I request the college team to present our college song. College team से निवेदन करूंगा कि हमारा college song रजू करें. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એક વાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એક વાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. Thank you all the college team for the nice song of the college. Moving forward again, giving intimation to the participant, it is our 12th webinar, and in this webinar series, due to your love and your attachment, we are making this kind of webinar for you. And today we are having Nirav Majmudar sir with us, Dr. Nirav Majmudar with us, and the topic for the today's webinar is
highest promotion, fastest promotion, and highest increment. So we are going to discuss deeply on this topic. So Nirav sir is here for that. Requesting to all the participants, kindly put your question through chat box. Now, I'm requesting our visionary leader, the Principal Dr. Kishore C. Chavda sir, जिनके विचारों से ये पूरी वेबिनार सीरीज चल रही है, जिन्होंने पूरे एक सामान्य जन तक एक मुहिम छिड़ी है कि हम सामान्य जन तक कुछ अच्छे विचार लेके जाएं, उनके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो ऐसा ही प्रिंसिपल किशोर सिंह चावड़ा सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पूरी इवेंट को ब्लेसिंग्स दे और जितने भी पार्टिसिपेंट है उन्हें वेलकम करें। चावड़ा सर। आज के दिनांक 6 जून का रोज, ये रविवार के दिन जीवन ज्योत ट्रस्ट संचालित जेजेडसा आर्ट्स एंड एचपी देसाई कॉमर्स कॉलेज अमरोली के प्रिंसिपल डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा की ओर से मैं ये पूरा 12वां वेबिनार में जहाज के मुख्य स्पीकर है डॉक्टर नीरव मजमूदार, उसे में और उसके साथ हमारे 3500 से ज्यादा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उसे सबको हम हमारी कॉलेज की ओर से हम स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है नीरव मजमूदार जी का, उसे भी मैं बधाई दे देता हूं कि लॉकडाउन में हाईएस्ट प्रमोशन के बारे में जो सोचते हैं, हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों की जॉबें जो है जो चली गई है, और सभी के लिए मैं सबको शुक्रिया भी कहता हूं। और डॉक्टर नीरव मजमूदार को भी मैं फिर से, आज की तीसरी बार आप हमारे लिए आप ये करने आए, इसीलिए मैं पूरे परिवार की ओर से तहे दिल से मैं आपका स्वागत भी करता हूं, शुक्रिया भी करता हूं। और सभी पार्टिसिपेंट और हमारी वेबिनार टीम को भी मैं शुक्रिया कहते, मैं सबका फिर से एक बार शुक्रिया कहता हूं। और नीरव मजमूदार से भी शुक्रिया, फिर से सबको वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you, Principal sir. Now moving forward to the introduction part of the today's speaker, I'm requesting Dr. Chirag Sitpuria sir to introduce this personality. Very good afternoon, one and all. I, Dr. Chirag Sitpuria, welcome you all in 12th webinar on how to get fastest promotion and highest increment. We are happy to have with us Dr. Nirav Majmudar sir. Dr. Nirav is trainer and business coach. He is a founder of My Sarthi Training and Coaching Firm, co-founder of M Ideas Lab, strategy consulting firm. Dr. Nirav has trained participants from 22 countries with over 14 years of experience in training. He has been awarded Once in Lifetime Award as the most innovative trainer award 2015 by Indian Society for Training and Development. He has trained over 30,000 plus participants on varied topics for employees of various departments of Government of India, Government of Gujarat, and various well-known private companies. Dr. Nirav has also been awarded for his research work at state, national, and international level academic conference. Dr. Nirav is member, Board of Studies in Uka Tersaria University. He is an executive board member in MS University, Baroda, and mentor in GTU, Innovation Council, Baroda. We welcome you once again, and I am very much sure that this session will help to change employees' behavior. Over to you, Mehul sir. Thank you, Chirag sir. ये नीरव सर का 3rd वेबिनार है। सो आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हाँ, जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बट जो पुराने हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं, उनके लिए नीरव मजमूदार सर अभी हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हैं। तो आई एम हैंडलिंग ओवर द सेशन टू नीरव सर to discussion on the topic how to get highest promotion and fastest increment. Over to Nirav sir. Thank you so much, Dr. Chirag and Dr. Mehul. It is my pleasure to be with you. And ये जैसे आपने बताया 3rd session. I am presenting my screen and आज का विषय is, let me tell you, it is very unique. आज हम इस सेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये यूनिक क्यों है, और मैं आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड टुडे फॉर दिस टॉपिक इज व्हाट हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर
रजिस्टर्ड ऑन लिंक्डइन? आई वांट टू आस्क यू, यहाँ से कितने लोग हैं जो लिंक्डइन के ऊपर रजिस्टर्ड है? प्लीज राइट इन चैट, क्या आप लिंक्डइन के ऊपर रजिस्टर्ड है? इफ यू आर रजिस्टर्ड इन लिंक्डइन, जस्ट टाइप कीजिए यस और नो। व्हाट आई वांट टू शेयर टुडे, बहुत सारे लोग लिंक्डइन के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जॉब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। आई वांट टू शेयर ये लॉकडाउन में क्या परिस्थिति हुई है। हम जब बात करते हैं हमारी टीम से, हमारे दोस्तों से, तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि अगर आपने ऑब्जर्व किया लिंक्डइन के ऊपर कैसे बिहेवियर है एम्प्लॉय का, कैसे बिहेवियर है नए स्टूडेंट्स का जो लास्ट ईयर में है, जो अभी जॉब मार्केट में आने वाले हैं, तो बिफोर लॉकडाउन क्या सिचुएशन थी? बिफोर लॉकडाउन लोग ऐसा कह रहे थे, इफ यू लुक एट लिंक्डइन, तो वहां पे एक लाइन लिखती थी और वो लोग लिख रहे थे इन देयर प्रोफाइल, दिस वाज द लाइन, और लाइन थी लुकिंग फॉर जॉब। वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ये नॉर्मल लाइन थी, सालों से हम पढ़ रहे हैं, प्रोफाइल के नीचे लिखा है लुकिंग फॉर जॉब। बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को सैलरी कम दी गई, बहुत सारे लोगों के दिमाग में टेंशन है, क्या हम आगे और बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर एक थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो गया, सिर्फ लुकिंग फॉर जॉब था ना, उससे एक स्टेटमेंट बढ़ गया और आगे बढ़ के एक वर्ड उन्होंने ऐड कर दिया, अब लोग लिख रहे हैं एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। अब उनके अंदर दे पेशेंस नहीं है, दे क्विकली वांट अ जॉब एंड दैट इज व्हाई दे राइट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब। बट अब लेट मी टेल यू, बिकॉज सिचुएशन इज सो नेगेटिव, बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं वी आर नॉट श्योर, क्योंकि कंपनी के पास ही बिजनेस नहीं है, कंपनी का सेल्स नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, दे आर नॉट श्योर ऑफ द बिजनेस। और मैं जोकिंगली ऑलवेज टेल कि जो सीक्वेंस है ना लुकिंग फॉर जॉब से एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, अब टाइम वो दूर नहीं है जब अब लोग लिखना शुरू कर देंगे अपने प्रोफाइल में डेस्परेटली लुकिंग फॉर जॉब, यानी बहुत डेस्परेट है, जॉब चाहिए वरना घर कैसे चलेगा। तो ये अलग अलग लेवल की बात है, और जिस लेवल के, और आज के तारीख में जब लोग बात कर रहे हैं कि वेदर हमारी जॉब चलेगी कि नहीं चलेगी, वेदर हमें सैलरी फुल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मे का सैलरी पेंडिंग है, पीपल डोंट नो हाउ मच दे विल पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वांट टू टेल यू टुडे कि एग्जैक्टली ऑपोजिट बात है, यहाँ पे जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी बात एक बाजू चल रही है, ऑन दी अदर हैंड हम बात क्या कर रहे हैं, क्या हम फास्टेस्ट प्रमोशन कर सकते हैं, क्या हम हाईएस्ट इंक्रीमेंट पा सकते हैं। इज द एक्साइटमेंट टुडे कि जब लोग ढूंढने की बात कर रहे हैं तब हम ग्रो करने की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज द साइंस ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट पीपल। व्हेन द टाइम्स आर टफ, द टफ गेट गोइंग। तो आज वो मौका है, जो टफ लोग हैं, जो वो दोज हु आर टैलेंटेड, वो मौका है उनको प्रूव करने का, दे आर डिफरेंट एंड दे कैन बी at the next level. So today we want to talk about how do we have the highest promotion and fastest increment. Now what are we going to do is we want to talk about the three levels. What is happening in the market? Let me tell you, usually ये level चल रहा है, ना तो लोगों को promotion मिल रहा है, ना तो लोगों को increment मिल रहा है, so they are at the lower level. But regular ज्यादातर लोग on an average लोग ये वाले हैं, second level वाले लोग हैं, लो प्रमोशन मिलता है और लो इंक्रीमेंट मिलता है। दिस इज कहानी घर की, सब लोग यही दो लेवल में है, बट आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो हाईएस्ट लेवल है, एंड द थर्ड हाईएस्ट लेवल इज टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। सो आई एम श्योर आप सब लोग स्टीव जॉब्स को जानते हैं। स्टीव जॉब्स ऑलवेज सेड ही बिलीव इन द पावर ऑफ 3। वो क्या है, 2 कम पड़ता है, 4 ज्यादा है, 3 इज द परफेक्ट नंबर। तो आज हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो बात 3 लेवल की करेंगे, एक लेवल की, लो लेवल की, एक एवरेज लेवल और एक लास्ट लेवल, जिस लेवल की बात आज हम करने वाले हैं। तो आई डोंट नो व्हाट लेवल यू आर, आप अपने आप को जानते हो, व्हाट इज योर लेवल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हालत है, नो प्रमोशन नो इंक्रीमेंट है, स्लो प्रमोशन लो इंक्रीमेंट है, या फिर एट व्हाटएवर लेवल यू आर, व्हाट वी वांट टू टॉक टुडे इज the fastest promotion in the highest increment. So let us start today's session with how to do all these things. But before that, I'd like to just share a very small anecdote and story. एक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया सिंगर था। अकबर ने उसको बुलाया कि he is the best singer. I want to listen to him. मुझे सुनना है उसको, इतना अच्छा कैसे गाता है। He said, अगर मैं गाना गाऊं तो मेरी एक शर्त है, शर्त ये है कि आप जितने लोगों को बुलाओ, दरबारी को बुलाओ, मैं सबको डेमो दूंगा। उस डेमो में मेरी शर्त ये है कि पूरा एंटायर मेरा जो कॉन्सर्ट है 2.5 आवर्स का, मैं वो 2.5 आवर्स का कॉन्सर्ट उन लोगों को सुनाऊंगा जो मेरे डेमो जो है 2.5 मिनट का, उसमें मुंडी ना हिले। जब आपको सॉन्ग अच्छा लगता है तो आप मुंडी हिलाते हैं, यू टैप योर फीट, यू स्नैप योर फिंगर्स, आप ऐसा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मुंडी नहीं हिलाएगा, मैं उसको पूरा 2.5 घंटे का
एंटायर कॉन्सर्ट सुनाऊंगा, ये शर्त थी। सो यू डोंट हैव टू शेक योर हेड। लोगों को बुलाया गया, 250 लोग आ गए, इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया। 2.5 मिनट के अंदर जितने लोगों ने मुंडी हिलाई, इनका नोट लिया गया था, उन सबको है ना, देवर आउट ऑफ 250 सिर्फ 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुंडी हिलाई और उन्होंने कहा कि हम नहीं रह सकते, वी कैन नॉट। अगर इतना अच्छा काम चल रहा है, इतनी अच्छी सॉन्ग चल रहा है, हम तो मुंडी हिलाएंगे, हम तो चुटकियां बजाएंगे, हम तो फ्री टैप करेंगे। एंड देन वो सिंगर क्या कहता है, सिंगर से मैं टेक्स्ट ले रहा था, जितने लोगों ने मुंडी हिलाई, जिन्होंने रियली लाइक किया, एडमायर किया म्यूजिक को, ये 25 लोग ही सुन सकते हैं। तो टुडे आल्सो आई वांट यू, आपकी भी मुंडी हिलनी चाहिए ना। व्हाट वी कैन नॉट सी यू, नीरव सर, व्हाट आई वांट इन्वॉल्व है कि नहीं नीरव सर, आप। हाँ जी, હા થોડો વોઇસ બ્રેક થાય છે વચ્ચેથી, આઈ થિંક ઇન્ટરનેટ ક્વેરી કદાચ. I will try to. ઓકે. Yeah. Okay. So what we want, वो मुंडी हिलनी चाहिए. I want everyone to get involved. And how we will get involved? I'll ask you a few questions, very short questions, और आपको short questions के answers देने. The first point which we want to talk today is how many of us, जितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग इस व्यक्ति को जानते हैं? Do you know him? Is one of my favorite character. यदि आपको पता है ये व्यक्ति कौन है, कौन से सीरीज से है, प्लीज चैट में आंसर लिखिए कि ये व्यक्ति कौन है. He is one of my favorite. Let me tell you who is he. He is. अगर आपको पता है तो कृपया चैट में लिखिए. Do you know who is he? He is Harvey Specter, one of my favorite. Do you know what Harvey Specter says? वो एक सीरीज है, सूट सीरीज, और सूट सीरीज में रिप्रेजेंट करता है ये. He says one wonderful line, and he says, Harvey Specter कहते हैं, he says, life is this. Harvey Specter कहते हैं, life is this. And I like this. He says, मुझे ये लेवल की लाइफ नहीं चाहिए, मुझे ये लेवल की लाइफ चाहिए. He lives a life which is above everyone. तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं. One is average life, one he is above. सिर्फ दुनिया में 3 से 5% लोग इस लेवल में है, बाकी 80 to 90% इस लेवल में है, और बाकी मोस्ट ऑफ देम आर एट लो लेवल. तो क्वेश्चन ये है, क्यों 70 to 80% लोग एवरेज लेवल में रहते हैं? यू नो व्हाई? क्यों सब लोग इस लेवल में, किसी को पता ही नहीं कि सुपर बिग लेवल है, किसी को पता ही नहीं कि इससे फास्ट प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है. ज्यादातर लोग इसी लेवल में रह रहे हैं. डू यू नो व्हाई? बिकॉज हम ऐसे माहौल में हैं, हम ऐसे लोगों के साथ हैं, वो सब इसी लेवल में. हम सबको लगता है कि ये हम तो सबके साथ चल रहे हैं, वी आर विद पीपल, दैट इज व्हाई वी डिड नॉट चेंज, बट दैट इज रॉन्ग. कई बार हम ऐसे गांव से हैं, हम ऐसे मोहल्ले से, हम ऐसे लोगों के साथ से हैं, हम ऐसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं जहाँ पे शायद हमारी सैलरी उन सबसे ज्यादा है. Now, that is why we never know कि हम लाइफ को एक एवरेज लेवल पे जी रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं ले रहे हैं. So, according to Harvey Specter, he says life is this. I like this. I'll just speak from here. Harvey Specter, one of their favorite character, he says life is this. I like this. तो नॉर्मली ये लेवल है लोगों का. इस लेवल पे जाना है तो आज के सेशन की जरूरत है. सो वी आर हियर टुडे टॉकिंग अबाउट दीज 3 लेवल, और ये 3 लेवल की बात हम करेंगे. फर्स्ट लेवल इज लोअर लेवल. ज्यादातर लोग यहाँ नीचे हैं, उनको पता नहीं है. हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस इज नॉर्मल लेवल, इज लाइफ इज दिस. बट टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट द हाईएस्ट लेवल, एंड व्हाट हार्वी स्पेक्टर ही सेज, आई लाइक दिस. उस लेवल की बात, दैट इज फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट. Now what is this? How do we reach at this level? Is बहुत सारे लोग जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, they are if you are poor at your work, तो आप lower level, bottom level पे रहोगे. If you are good, यानी I might say you are not using the word, you are good. आप अच्छे हो अपने काम में, but आप एवरेज लेवल पे रहोगे. जो हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं वो गुड पे रुकते नहीं है. You need to move from good to great. एक entire book है और उस बुक का नाम है Good to Great. So the next level, the highest level of promotion and highest increment अगर आपको चाहिए, then you need to be at the highest level, जिसको हम कहते हैं be great. Please read this book. इस बुक का नाम है Good to Great. ज्यादातर लोग गुड में रुक जाते हैं. एक बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते. रॉबिन शर्मा एक लाइन बहुत ही बढ़िया कहते हैं, and Robin Sharma says, he says in just one line, and then we need to note it, and he says we need to keep it like a brain tattoo. दिमाग में लिख देने की बात है. And that line is, he says, nothing fails like success. वो कहते हैं nothing fails like success. एक बार हम गुड हो जाते हैं, एक बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं,
हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो प्लीज डोंट स्टॉप एट गुड। आवर जर्नी इज फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। उसके लिए हमें गुड से जर्नी जानी पड़ेगी ग्रेट तक। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन वी डू। एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, ये 15-20 शीप है। एक क्वेश्चन आप सबसे है, अगर 43 शीप है, वो जा रही है पर्वत के पास, उस 43 में से एक शिप गिर जाती है खाई में, इस 43 में से एक शिप गिर जाती है खाई में, तो माउंटेन के ऊपर कितनी शीप बचेगी? प्लीज मेंशन इन चैट, कैन यू टेल मी माउंटेन के ऊपर कितनी शीप बचेगी? माउंटेन के ऊपर 43 में से एक गिर गई, इंटरेस्टिंग, वो 43 में से एक भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो सब भेड़ है, वो सब शिप है। इसको कहते हैं भेड़ चाल। एक गिर गई तो बाकी सब गिर जाएगी। Why I'm talking this is क्वेश्चन 1 मेरा आप सबसे ये पूछना है, आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस प्रोफेशन में, आप जिस कोर्स में, अगर आप स्टूडेंट है तो आप याद कीजिए आपने कोर्स क्यों लिया था। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो याद कीजिए आपने ऐसी इस तरह की जॉब क्यों ली थी। क्या वो एक व्यक्ति कर रहा था, बाकी दूसरे कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसलिए आपने लिया था, या फिर आपको वो पसंद था? द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, अगर बहुत सारे रीजन हम लिस्ट करें कि कैसे लोग अपने प्रोफेशन में एकदम फास्ट होते हैं, कैसे एकदम आगे बढ़ते हैं, उसका एक रीजन है, वो भेड़ चाल नहीं चलते हैं। सब लोग साइंस ले रहे हैं, मुझे भी साइंस लेना चाहिए, मेरे दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं, मुझे भी कॉमर्स लेना चाहिए, ये लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, सब लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, मुझे भी कंप्यूटर करना है। अगर ये भेड़ चाल होगी तो हम फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट दिला पाएंगे। सो तो क्वेश्चन है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, आप जिस फील्ड में है, जिस प्रोफेशन में है, जहां भी है, वहां चॉइस से है या चांस से है? गलती से पहुंच गए, लोगों ने बोल दिया तो पहुंच गए। आप एरो देखिए, अगर चॉइस आपकी है तो एरो ऊपर है, यदि आप चांस है, बाकी लोगों ने कहा, आप दूसरों के कहने से है चांस है, तो एरो नीचे है, मतलब आप नीचे जाएंगे। तो अगर आपको प्रमोशन करना है तो क्वेश्चन अपने आप से पहले पूछिए, जो फील्ड में मैं हूँ, क्या वो फील्ड मेरे चॉइस की है? जहां मैं आया हूँ, मैं खुद आया हूँ या किसी और ने भेजा है, या और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हम यहाँ आ गए? एंड दैट इज व्हाई एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज इकिगाई। आई वांट टू आस्क यू, कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना, इकिगाई? इट इज अ जापानीज कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये जानने के लिए, व्हाट यू शुड डू इन लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को कहता है इकिगाई। आई डोंट नो इफ आपको पता है इकिगाई क्या है, प्लीज राइट इन चैट यस और नो। क्या आपको इकिगाई के बारे में पता है? ये कई बार हम कहते हैं आपको जो पसंद है वो कीजिए, आपकी दिल की सुनिए, बट ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन से फील्ड में जाना कैसे चलनी है, वो कैसे? इसको गुजराती में कहते हैं गाडर क्यों प्रभा एंड इन हिंदी भी से भेड़ चाल। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई आवर ओन इनर स्ट्रेंथ, एंड एक्चुअली इनर स्ट्रेंथ के भी ऊपर क्या होता है उसको कहते हैं इकिगाई। लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आप ढूंढो कि व्हाट आर यू गुड एट, आपको क्या आता है। नेक्स्ट लेवल आता है, आपको आता भी है, प्लस ये पिंक में जो लिखा है व्हाट टू रियली लव, आता है और करना बहुत पसंद है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी गुड एट ड्राफ्टिंग लेटर्स एंड ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आई एम वेरी गुड, आता भी है, बट तो दिल से पसंद नहीं है, मुझे ड्राफ्टिंग करना पसंद नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन देना पसंद है। तो दो क्वेश्चन पूछो, आता है और यू लव इट, तब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बनता है आपका पैशन। कई बार हम सुनते हैं फॉलो योर पैशन, तो फॉलो योर पैशन का मतलब है आता भी है और आपको पसंद भी है। तो द नेक्स्ट लेवल जो कई बार हम भूल जाते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। आपको आता है, आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे वीडियो देखना बहुत पसंद है, या मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, तो क्या दुनिया को ऐसे व्यक्ति की चाहिए? जरूरत है जो वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलता है, जो टीवी अच्छा खेलता है, जो घूमता अच्छा है। अगर दुनिया को पसंद नहीं है, देन ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड देन यू डोंट गेट अ गुड प्रोफेशन। And one final aspect which you need to understand is we go to the green one, and the green part says what you are paid for. दुनिया को चाहिए भी और लोग उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। I'll give you one example. आपको आता है, आपको पसंद है, लोगों को चाहिए बट लोग पैसे नहीं देते। ये जितने कवि लोग होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होता है, सुनना अच्छा लगता है बट जेब से पैसे कितने लोग निकाल के हैं। जब ये चार चीज कंबाइन हो जाती है, गुड है, आपको आता है, यू लव इट, आपको पसंद है, दुनिया को चाहिए और दुनिया पैसे देने के लिए तैयार है, जब ये चारों चीज मिक्स हो जाती है तो वो बनता है आपका इकिगाई। आई हैव वेरी ब्रीफली मैं ये कह रहा हूँ कि इकिगाई ढूंढना सीखो। जब आप ये इकिगाई पे जाओगे, अपना इकिगाई ढूंढोगे, तब जाके आप बहुत बढ़िया काम करोगे, ऑब्वियसली आपको हाईएस्ट प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 3 लेवल के लोग होते हैं जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह से पढ़ने में भी है। तो 3 लेवल, पहले लोग ऐसे हैं जो जहां है
वहां क्यों है? वो अपनी चॉइस से नहीं है, दे आर नॉट हियर बाय देयर चॉइस, और इसलिए उनको प्रॉब्लम आता है। सेकेंड लेवल के लोग होते हैं, दे आर हियर बिकॉज दे लाइक इट, उनको पसंद है ये काम करना, यस आई लाइक इट एंड दे आर हियर। बट यू नो हु आर एट द हाईएस्ट लेवल? द हाईएस्ट लेवल आर पीपल जो लाइक से भी ऊपर होता है लव, दे लव डूइंग इट। अगर आपको दिल से पसंद है वो काम करना, तब आप और कोई चीज नहीं देखते हैं, देन यू डू इट विथ योर फुल हार्ट। एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा था एंड इट वाज एट रात को 9 बजे 9:30 बजे मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन अब टाइपिंग फॉर्मेटिंग करना शुरू करना चाहिए। आई स्टार्टेड डूइंग इट एट नाइट 9:30, प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब कितने बजे, लेट मी चेक, वापस जब टाइम देखा तो वो टाइम था मॉर्निंग में 8:30 फॉर 11 आवर्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, पता भी नहीं चला कि इतना घंटा कैसे, इतना टाइम कैसे बीत गया। दैट इज नोन एज व्हाट यू लव। तो जब आप ऐसे काम में, जब आप टाइम नहीं देखते, टेम्परेचर नहीं देखते, जब आप पैसा नहीं देखते, आप पसीना नहीं देखते, जब आप यू जस्ट लव डूइंग इट, तब आपको मिलता है highest amount of increment and fastest promotion. If you want to do it, find out what you love to do. That is the key. First की हम बात कर रहे हैं कैसे हम fastest promotion और highest increment लाएं। आगे बढ़ते हैं और एक स्टोन कटर की बात करते हैं। एक बार एक फॉरेनर था, वो जाता है व्यक्ति से पूछता है, एक्सक्यूज मी आप क्या कर रहे हैं? तो उसके पीछे घूमता होता है, दिखाई नहीं देता, अंधा है, पत्थर तोड़ रहा हूँ, क्या पूछ रहा है मुझे, ये पसीना तेरे को फोटो की चला। इतना गुस्सा हो जाता है, डर जाता है, वहां से भाग जाता है, चला जाता है थोड़ा दूर। दिस इज व्हाट हैपेंड, बट ही वांटेड टू क्लिक फोटोग्राफ। दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उनको बोलता है, एक्सक्यूज मी आप क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति पीछे घूमता बोलता है, नमस्ते ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है, रोज का काम यही मैं रोज करता हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। तो वो इतना बोल के उनको जाने देता। अब बात आती है, वो और आगे जाता है, थर्ड व्यक्ति के पास जाता है, उनको जाके पूछता है, एक्सक्यूज मी आप क्या कर रहे हैं? व्यक्ति पीछे घूमता है, बोलता है, नमस्ते सर, व्हाट आर यू डूइंग? सर आपको क्या बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ? सर वैसे तो मैं अनपढ़ गवार आदमी हूँ, पर ये ऊपर वाले की मेहरबानी देखो, इस अनपढ़ गवार को मंदिर बनाने का दिव्य काम दिया है, आप मंदिर बना रहा हूँ। Sir, I want to ask you few questions, very quick questions. ये जो फॉरेनर था, ये 3 लोगों को मिला, क्या वो सेम काम कर रहे थे अलग अलग? सेम काम क्या अलग अलग? What do you think? I can check. क्या वो सेम काम कर रहे थे कि अलग अलग काम कर रहे थे? Do you think they were doing 3 different jobs? No, वो लोग सेम काम कर रहे थे। बट ये सेम काम कर रहे थे तो उनका बिहेवियर सेम था कि डिफरेंट? तो बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट। पहला गुस्से में, दूसरा नॉर्मल, तीसरा प्रसन्नता से काम कर रहा है। यू नो व्हाट वाज द डिफरेंस? क्या आपको लगता है तीनों के, यानी पहला धूप में था और तीसरा एसी में था, ऐसा था? नो। क्या आपको लगता है कि पहला वो हाथ से मजदूरी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, और दूसरे के पास कंप्यूटर ऑपरेटेड सीएनसी मशीन था, वो बटन दबा के पत्थर तोड़ रहा था, ऐसा था? नो। क्या उनको सैलरी अलग मिली थी? नो। क्या उनके बॉस अलग थे? नो। क्या उनकी कंपनी अलग थी? नो। ये तीनों एक ही जगह पर हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में, एक ही बॉस है, एक जैसी सैलरी है। तीनों में अगर डिफरेंस है तो वो है उनका काम के प्रति उनका नजरिया, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। पहला व्यक्ति क्या कह रहा था? उसने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, उसको गुस्सा आता है, उसको दुख होता है, उसको थकान लगती है। दूसरा व्यक्ति वो काम कर रहा था अपने आप के लिए, वो मेरा परिवार का काम है, मुझे मेरी फैमिली के लिए करना पड़ता है, वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, he is neither elated nor he is sad। और फाइनल व्यक्ति वो इतना प्रसन्न है, he is so happy, वो कह रहा है कि मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मंदिर बनाने का दिव्य काम कर रहा हूँ, और वो हैप्पी है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे, आज मैं यहाँ बैठे बैठे थ्रू आवर अमरोली कॉलेज एंड थ्रू माई सारथी फॉर्म, हम यहाँ बैठे बैठे आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। I cannot change anything, but what can I do is I can give you one choice, और वो चॉइस है, कल जब आप जॉब पे जाओगे या नई जॉब ज्वाइन करोगे या कुछ भी काम करने जाओगे ना, दिस जॉब सेम रहेगी, औजार सेम रहेंगे, वर्किंग कंडीशन सेम रहेगी, कलीग सेम रहेंगे, बॉस सेम, कंपनी सेम, पगार सेम, सब कुछ सेम रहने वाला है। बट आपके पास एक चॉइस है, और वो चॉइस है आपको गुस्से से काम करना है, नॉर्मली काम करना है, कि प्रसन्नता से काम करना है। वो चॉइस आपके पास है। और कौन लोग नीचे रह जाते हैं? ये तीनों चॉइस आपके पास है। नीचे कौन रह जाएंगे? जो गुस्से से काम करेंगे ना, वो नीचे रह जाएंगे। जो नॉर्मली काम करेंगे वो एवरेज रह जाएंगे। जिनका होगा स्लो प्रमोशन, स्लो ग्रोथ, और हाईएस्ट लेवल ऑफ फास्टेस्ट प्रमोशन और हाईएस्ट इंक्रीमेंट उनको मिलेगा हु वर्क विद प्राइड, जिनको गर्व है। किस चीज का गर्व है? वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, जब आपको उस
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर गर्व होगा, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। आपको कितना प्राइड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होगा, लगा होगा, तब आप हाईएस्ट लेवल का काम कर पाओगे, तब आप दिल से काम कर पाओगे, तब आप मोर देन 100%, लेट मी टेल यू, आप 100% से ज्यादा दे पाओगे, एंड देन यू गेट द highest, then you get the fastest promotion and highest increment. So do you like your organization? Is another factor. पहला हमने कहा is it your passion? Do you love it? दूसरा हमने कहा आपका काम के प्रति लगाव, और अब दूसरा है do you love the organization? अगर ऑर्गेनाइजेशन से प्यार है, उनके विजन के साथ आपका अटैचमेंट है, तब जाके आप जबरदस्त जोरदार काम कर पाओगे, उनको मिलेगा फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, एंड दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, एक बार लोग बात करते हैं कि जब हमें ये मिल गया तो जॉब मिल जाएगी ना, व्हाट इज दैट वन वर्ड? डिग्री कहते हैं, बट लेट अस टॉक अबाउट इट इज नॉलेज। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई, नॉलेज मिल गया, मुझे जॉब मिल जाएगी। सबको, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया है। When we talk about knowledge, the question is, हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि जिस दिन मुझे नॉलेज मिल गया, उस दिन मेरा काम हो जाएगा, आई विल बी वेरी फास्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रोइंग। बट प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इज एक स्टेप ज्यादा, उसको कहते हैं नॉलेज के आगे स्किल्स। बट ये स्किल्स में कन्वर्ट कब होगा? जब आप आपके नॉलेज को कन्वर्ट करो स्किल्स में। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। व्हेन यू हैव द स्किल्स, तब ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रमोशन मिलेगा। बट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ रुकती भी नहीं है, उसको एक स्टेप और आगे चाहिए, और उसको कहते हैं नॉट ओनली नॉलेज, व्हाट यू वांट फर्दर इज। So how do you convert from knowledge to skill to capability? By practice. आप जितना फास्ट प्रैक्टिस करोगे, उतने आप कैपेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाओगे। So what is capability? is mastery. कॉलेज में डिग्री मिल गई, नॉलेज, प्रैक्टिकल काम किया, स्किल्स, उसमें आपने मास्टरी आ गई, कैपेबिलिटी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप केपेबल हो जाओगे तो आपको फास्टेस्ट प्रमोशन मिल जाएगा? रॉन्ग। एक स्टेप यहाँ से भी आगे है, यानी मास्टरी के बाद भी होता है, और उसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। आप जितनी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, उतनी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग कहते हैं हम कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स पे काम करते हैं। तो काम में मास्टरी आ गई, तो उसमें से कॉम्पिटेंस में हम कैसे जाएंगे? हाउ डू यू मूव फ्रॉम कैपेबिलिटी टू कॉम्पिटेंस? कैन एनीवन गेस? क्योंकि नॉलेज आ गया, स्किल आ गई, मास्टरी भी आ गई, तो कॉम्पिटेंस क्या होता है? व्हाट इज देयर लेफ्ट? मास्टरी के बाद क्या लेफ्ट है? Can you guess? Can you write in chat what is left after capability? एक चीज रहती है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है? यदि बिहेवियर अच्छा है, तब ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। Even if you are great, then still or in. So 3 levels। सिर्फ नॉलेज की बात करेंगे तो लोएस्ट लेवल होगा। स्किल्स एंड कैपेबिलिटी यानी प्रैक्टिकल भी आता है और मास्टरी भी है, तो सेकंड लेवल। फास्टेस्ट लेवल जाना पड़ेगा एटीट्यूड। बहुत बार हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कहा जाता है, इंटरव्यू में कहा जाता है 85% डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, और सिर्फ 15% डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड यानी नॉलेज एंड स्किल्स के ऊपर। सो फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट अगर आपको चाहिए, तो आपको बिल्ड करना होगा मास्टरी ऑफ योर वर्क प्लस एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो दैट इज व्हाट यू वांट। तो एटीट्यूड कहां से आता है? एटीट्यूड आता है माइंडसेट से। क्या देखती है ऑर्गेनाइजेशन? जितने आपके बॉस है, जितने आपके हाईएस्ट लेवल के लोग हैं, वो आपके अंदर क्या क्या चेक करते हैं? लेट मी टेल यू। फर्स्ट थिंग वो देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, इसका माइंडसेट कैसा है। बट ये माइंडसेट को प्रैक्टिकली जाना कैसे चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड। माइंडसेट को जानने के लिए वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्या वो सिर्फ टाइम ओरिएंटेशन से काम कर रहा है? व्हाट इज टाइम ओरिएंटेशन? 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। सो जो लोग सिर्फ टाइम देख के काम करते हैं और कंपनी को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, उनको नीचे रखते हैं। सेकेंड लेवल के लोग होते हैं जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड? उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है, मुझे इतना बोला गया है, उतना काम मैं कर दूंगा, बात खत्म। दैट्स इट, दैट इज टास्क ओरिएंटेशन। बट जो हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड होते हैं। वो सिर्फ टाइम नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना काम नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी को क्या चाहिए, वो देखते हैं कि कंपनी किस लेवल पे है, मुझे कंपनी के लिए क्या करना है। दे डोंट सी टाइम, दे डोंट सी टास्क, वो देखते हैं कंपनी अभी लॉकडाउन में है, कंपनी को प्रॉब्लम है, कंपनी का सेल्स नहीं है, कंपनी में भी रेवेन्यू नहीं है, तो कंपनी के लेवल पे मुझे क्या करना है। अगर उस लेवल की बात करेंगे तो अब वो लोग कंपनी को अच्छे लगते हैं, बॉस को अच्छे लगते हैं, देन दे कीप देम एट द हाईएस्ट लेवल। उनको मिलता है फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई जस्ट
बहुत अच्छी मूवी है। कितने लोगों को पता है ये कौन सी मूवी है? वेरी फेमस, वेरी वंडरफुल मूवी। और इस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मूवी का नाम है ये जवानी है दीवानी। यहाँ पे है ना, रणवीर कपूर एक लाइन कहता है, लाइन इज वेरी वेरी फेमस। इट सेज, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, बट सिर्फ रुकना नहीं चाहता। सो जब प्रॉब्लम आता है, लुक दिस लॉकडाउन, दिस कोरोना इज टाइम बिंग, 3 महीने 4 महीने 6 महीने रहेगा, बट जब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं, किस माइंडसेट से हैं, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू व्हेन देयर आर प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम आ गया और आप रुक गए तो आप लोएस्ट लेवल पे हैं। प्रॉब्लम आए और आप लोगों के साथ हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग इस लेवल के ऊपर हैं, लोग वेबिनार करने लगे, मैं भी वेबिनार करने लगता हूं, देन यू विल स्टे एट देयर लेवल, दैट इज एवरेज लेवल। बट what is the highest level is you surpass them। लोग अपनी जॉब बचाने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं fastest promotion and highest increment की, that is surpassing others। that is the highest level and that is the great attitude which we want to develop today। आज उसी attitude की बात करेंगे। जब प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हैं? जब ये सिचुएशन देख लो, कोरोना आया, कोविड-19 आया, what did you do, what was the problem? so when there is problem, एटीट्यूड कैसे दिखता है, आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जब कोरोना आया था तो आप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने क्या किया, लोगों ने कैसे बात की। 3 तरह के लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आता है। पहले लेवल के लोग होते हैं जो अपने बॉस के पास जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, दे गो विद प्रॉब्लम, एंड नॉट ओनली कोविड-19, एनी अदर प्रॉब्लम, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम आया तो व्हाट दे विल डू इज, वो जाएंगे और जाने के बाद कहेंगे सर ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कुड नॉट डू इट। So they remain at lowest level। Next level कौन आते हैं? These are the people who solve their own problem। वो अपने प्रॉब्लम के लिए बॉस के पास जाते नहीं हैं, and that is why they solve all the problem, and then boss likes them, boss gives them promotion। हाँ, वो अपना काम कर रहा है तो उसको शायद स्लो प्रमोशन, लो इंक्रीमेंट मिलेगा, बट उसको मिलेगा क्योंकि वो अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है। So कई बार ऐसा कहते हैं इन मैनेजमेंट, इन MBA we teach to all the students, ऐसा उनको कहते हैं, when there is a problem don't go with problem, go with solutions। तो जो लोग सॉल्यूशन से जाएंगे, बॉस को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। जो लोग ऑल्टरनेटिव के साथ जाते हैं, बॉस को ऐसे लोग पसंद है। सो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, अपने आप से पूछो और अपने आजू बाजू के कलीग लोगों के साथ कंपेयर करो, कैसे लोग हैं जो स्लो प्रमोशन वाले, वो ऐसे ही होंगे जो प्रॉब्लम लेके बॉस के पास जाते होंगे, जिनका प्रमोशन और वो सब उनको मिल रहा है, वो लोग सॉल्यूशन लेके जाते होंगे, बट वो किसका सॉल्यूशन करते हैं? अपने लेवल का सॉल्यूशन करते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्रीमेंट एंड फास्टेस्ट प्रमोशन कौन पाते हैं पता है? वो सिर्फ अपना प्रॉब्लम नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अगर कोविड-19 की वजह से, अगर पेंडेमिक की वजह से, अगर किसी भी मंदी या रिसेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आया, आपने क्या किया? क्या आपने ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स के प्रॉब्लम, प्रोडक्शन के प्रॉब्लम, रेवेन्यू के प्रॉब्लम, एम्प्लॉय मोटिवेशन के प्रॉब्लम क्या आपने सॉल्व किया? अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे, तब यू विल बिकम द फेवरेट एंड हॉट फेवरेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तब जाके आपको मिलेगा फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करते हैं? These are the 3 levels, and who gets the highest amount of increment and fastest promotion? जो कंपनी लेवल के, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के, इंस्टीट्यूट लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हैं, ऑब्वियसली कंपनी वुड लाइक देम। ना अब सोचो, बॉस एम्प्लॉय क्यों रखते हैं? जब उनके प्रॉब्लम है, उनके पास टाइम नहीं है, दे वांट पीपल टू सॉल्व इट, तो ऑब्वियसली बॉस अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी एम्प्लॉय को रखेगा। सो बॉस अपने नीचे एक व्यक्ति को लगता है लेवल 1, लेवल 1 वाला अपने आप को हेल्प करने के लिए लगता है लेवल 2, लेवल 2 वाला व्यक्ति लगता है लेवल 3। सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। द ट्रस्टी और द ओनर्स, then there are the CEO and their principals, then you have different faculty, then you have different category of level of organization। so इस तरह से ओनर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेवल 1, उनके नीचे लेवल 2, उनके नीचे लेवल 3 रखते हैं। so this is how the organization works। आप देखो ये टेबल में लिखा है L1, लेवल 1 वाला व्यक्ति वो हायर किस लिए किया गया है? ओनर का काम करने के लिए। L2, लेवल 2 वाले क्यों रखा गया है? he is hired for L1 का काम करने के लिए। L3 को क्यों रखा है? L2 के लिए। So this is normally why they are hired, but do you know what happens really in the organization? We are working at -2 level organization। कैसे? अब ये L1 अपना काम कर रहा है ओनर के लिए, बट उसके नीचे के एम्प्लॉय ऐसे हैं, इतने पुअर हैं, उनका काम एकदम बराबर नहीं है, एंड देन ही हैज टू रिपोर्ट टू बॉस। अब क्या होता है? अब L2 वाला काम बराबर नहीं करता तो L1 को क्या करना पड़ेगा पता है? L1 L2 का काम करने लगता है, उसको हाथ बटाने लगता है, उसको हेल्प करने लगता है। सो नाउ L1 is working at L2 level, L2 working at L3 level, L3 working at L4 level। नाउ आप देखो
एंटायर गैप ऑफ 2 लेवल हायर किया था, L2 के लिए कर रहा है L4 के लिए, L1 के लिए, L3 के लिए, ओनर के लिए, L2 के लिए। इंडिया में एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एट -2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए हम आप देखो टॉप 5 कंपनीज में इंडिया की नहीं आती। इट इज वेरी सैड दैट वी आर वर्किंग एट -2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लोग पसंद है, ये भी 3 लेवल बनाते हैं। जो लोअर लेवल में फंसे हैं, अपने के नीचे लेवल का काम करने में फंसे हैं, बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट अच्छे नहीं है, तो वो नीचे ही रहेंगे क्योंकि उनके काम का लेवल ही वो है। जो अपने आप का अपना लेवल का काम कर रहे हैं वो एवरेज रहेंगे, बट जो हायर लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अभी एक कंपनी के साथ हमारा काम चल रहा है, यूके बेस्ड कंपनी है, उनको यहाँ पे एक प्लांट था, वो प्लांट में लोकेशन चेंज करना था। What this, there was a production manager, उस प्रोडक्शन मैनेजर ने उनको नई जगह ढूंढ के दी। ये नई जगह ढूंढी वो, इट वाज अबाउट 60 करोड़। आप देखो अगर 1% भी आप इसका जो ब्रोकरेज देते हो, 1% इज ऑल्सो 60 lakhs। ये बंदा ऐसा व्यक्ति है जो ढूंढ के लाता है 60 करोड़ की जगह, एंड 60 लाख उनके बच जाते हैं। नॉट ओनली दिस, उनकी पुरानी जगह जो लीज के ऊपर थी, जो उसको जो उनको बाई की थी, उनको बेचनी थी, वो भी डील क्रैक करता है, वो 30 करोड़ की थी। नाउ ही डज द वर्क ऑफ हिज बॉस एट द नेक्स्ट लेवल। वो प्रोडक्शन यानी उसके लेवल की बात नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की नई जगह, नया लोकेशन, पूरी जगह, पुराना लोकेशन का क्या काम करना है। Look at them, he is solving problems at that level। आप सोचो जब ये व्यक्ति अपने बॉस का पूरा हेडेक ले लेता है, ऑर्गेनाइजेशन के सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो क्या ये फास्टेस्ट प्रमोशन और हाईएस्ट इंक्रीमेंट के काबिल है कि नहीं है? ऑब्वियसली ही विल बी डूइंग इट। आप क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या आप सिर्फ अपने लेवल तक सीमित रहते हो कि आपके बॉस के लेवल के, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के प्रॉब्लम के ऊपर भी बात करते हो, सॉल्व करते हो? इफ यू कैन डू दैट, तब आपको मिलेगा फास्टेस्ट इंक्रीमेंट एंड हाईएस्ट प्रमोशन। एक पॉइंट, वी आर टॉकिंग एट 3 डिफरेंट लेवल एंड 3 वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। जस्ट आइडेंटिफाई एट व्हाट लेवल आर यू थिंकिंग। इफ यू विल थिंक एट द थर्ड एंड हाईएस्ट लेवल, आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग द फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट। नाउ विल वी स्किप दिस? Okay, so let us understand, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, but because of that, one day it says that you are given the India's Best Employee Award. Let me tell you, if you get an award, India's Best Employee, एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक सेल्समैन था, 3 साल तक पूरे इंडिया में वो सबसे बेस्ट काम करता है। सेल्समैन ऑफ द ईयर इन 2018, सेल्समैन ऑफ द ईयर 2019 एंड सेल्समैन ऑफ द ईयर 2020। जो मार्च में एंडिंग होता है तब उनको 3 बार उसको बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है। आपको क्या लगता है इस व्यक्ति को, जो 3 साल से पूरे इंडिया में हजारों सेल्समैन के अंदर नंबर 1 बन के आता है, क्या वो सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। यू माइट बी दी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और तो भी आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन, इंक्रीमेंट शायद मिल गया हो, प्रमोशन ना मिला हो। ये क्वेश्चन में तो सीधा कह रहा हूं, ये एक लोकेशन की बात नहीं है, मल्टीपल लोकेशंस, एंटायर कंट्री, और एंटायर कंट्री में नंबर 1 था। विल कम टू दिस इन वेरी शॉर्ट स्पैन। 3 साल तक नंबर 1, क्या उसको सेल्स मैनेजर बनाना चाहिए कि नहीं? लेट अस टेक दिस फ्यू एग्जांपल। डू यू नो दिस 2 जेंटलमैन वेरी फेमस इन इंडिया? सचिन तेंदुलकर एंड मनमोहन सिंह। सचिन तेंदुलकर को क्या नाम दिया जाता है? प्लीज राइट इन चैट। आप बताओ सचिन तेंदुलकर को हम किस नाम से जाते हैं? कितना रिस्पेक्ट हम सचिन को देते हैं? कैन यू राइट इन चैट, व्हाट डू यू कॉल सचिन तेंदुलकर? मास्टर ब्लास्टर, ओके, द लिटिल मास्टर, द मैन विद गोल्डन हैंड। बट एक नाम उनको दिया गया है, ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, रिलीजन है। अगर रिलीजन है तो रिलीजन में गॉड है। इफ देयर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट, इज सचिन तेंदुलकर। सेकंड जेंटलमैन इज मनमोहन सिंह। डू यू नो मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह, ही इज द वन जो इंडिया में लेके आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया को ओपन इकोनॉमी बनाई मनमोहन सिंह ने। Now when he did this, he was absolutely is one of the best finance minister जो इंडिया को आज तक मिला है। So one is god of cricket, one is the best finance minister. My question to all of you is, how was Sachin as the captain of Indian cricket team? How was Manmohan Singh as the prime minister of India? Now they were legends when they were working. Sachin is God. He is the best finance minister, but he did not work and he could not be captain and he could not be PM. Do you know why? Because there is a difference between organization ये देखती है
हम लोग ज्यादातर लोग इंडिया में ये समझते ही नहीं है डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए परफॉर्मर एंड लीडर. लेट मी रिपीट दिस फॉर यू. ये और आपके बॉस देखते हैं, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर अवेयर, बट आप देखते हैं परफॉर्मर, बॉस देखते हैं दो लेवल के लोग, ऑर्गेनाइजर देखते हैं दो लेवल का व्यक्ति. फर्स्ट इज one those who are great performer, and second those who are great leaders. So my question to you is, क्या परफॉर्मर है कि लीडर है? अब जाके let us go back to that example of the salesman के एग्जांपल में हमने बात की थी. 3 साल तक बेस्ट सेल्समैन. एक कंपनी ने अगर उसको सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना दिया, आपको पता है एक ऐसा हुआ, they did it, और उन्होंने एक पोजीशन बिगाड़ दी. Do you know which? एक पोजीशन कंपनी ने बिगाड़ दी. सेल्समैन था, 3 साल बेस्ट आया, उसको सेल्स मैनेजर बनाया. It is not, you know which position company ruined? It is not one, it is both. क्यों बताए? एक खराब सेल्स मैनेजर कंपनी में आया और एक अच्छा सेल्स मैनेजर चला गया. कंपनी डोंट वांट टू टेक रिस्क. लेट मी टेल यू, ये सिर्फ 2 पोजीशन की बात नहीं थी, ये पोजीशन शायद 10 हो सकती है, क्योंकि वो मैनेजर बन गया तो उसके अंडर में दूसरे 10 लोग हैं, वो लोग भी खराब काम करेंगे. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. कंपनी ये देखती है कि आप जो काम कर रहे हो, आर यू अ परफॉर्मर और आर यू अ लीडर. अगर आप परफॉर्मर है, वेरी गुड, कंपनी आपको निकालेगी नहीं, बट प्रमोशन भी नहीं देगी. सो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, आर यू अ परफॉर्मर और लीडर? ये कैसे बनते हैं, उसके 3 लेवल आपको समझाता हूं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मर एंड द लीडर? जो परफॉर्मर, जो लोएस्ट लेवल के लोग होते हैं, वो टेक्स अदर्स हेल्प. वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, उनको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है. अभी मैंने कहा था, दे गो फॉर प्रॉब्लम्स एंड दे गो फॉर सॉल्यूशन फ्रॉम अदर्स. दूसरे के पास जाएंगे, दे टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. दैट इज व्हेयर दे आर एट द लोएस्ट लेवल. सेकंड लेवल के लोग होते हैं जो सेल्फ रिलायंट होते हैं, अपना काम खुद करते हैं. यानी लाइक सचिन तेंदुलकर, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, जबरदस्त काम करते हैं. लाइक मनमोहन सिंह. बट यू नो एट द हाईएस्ट लेवल कौन है? कैन यू गेस व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? पहले लेवल के लोग जो खुद हेल्प लेते हैं, दूसरे लेवल के लोग जो सेल्फ रिलायंट है, अपना काम खुद कर रहे हैं. बट लीडर बनना है, हाईएस्ट प्रमोशन अगर आपको चाहिए, तो सिर्फ परफॉर्मर होना काफी नहीं है. व्हाट यू नीड टू हैव इज वन मोर लेवल, इज मेक अदर्स सेल्फ रिलायंट. जब आप दूसरे लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाओगे, उनके लेवल के ऊपर लेके जाओगे, तब आप लीडर बन पाओगे. लीडर के लिए कोट है, द कोट सेज इज, लीडर इज नॉट वन जो दूसरे फॉलोअर बनाए, लीडर तो वो है जो और लीडर बनाए, दूसरों का लेवल भी बढ़ाए. सो कंपनी अगर प्रमोशन नहीं दे रही है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को मनोमंथन करना पड़ेगा, क्या आप परफॉर्मर हो कि लीडर हो. अगर आप परफॉर्मर से उठ के काम कर पाते हैं, देन यू विल बिकम लीडर, और तब आपको मिलेगा फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट. नाउ एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, क्विकली प्लीज क्लोज योर आईज. प्लीज क्लोज योर आईज. एक क्वेश्चन आप सबसे है, प्लीज क्लोज योर आईज. आंखें बंद कीजिए. एक टास्क आपसे करवाना है, जब तक मैं ना कहूं प्लीज आंखें बंद मत करना. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. आंखें बंद कीजिए प्लीज. एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज. ओके, ऑल दोज हु आर लिसनिंग प्लीज क्लोज योर आईज. अब याद करो आपके उन दोस्तों को जिनके साथ आप रेगुलरली रहते हो और ज्यादातर रहते हो. आप याद करो ऐसे लोगों को जो रेगुलर, 5-6 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप रेगुलर घूमते होंगे, जब रेगुलर मिलते होंगे, सबसे अपनी सब बात उनके साथ शेयर कर रहे होंगे. सो प्लीज थिंक ऑफ दोज 5-6 पीपल जिनके साथ आप सब रहते हैं. अब सेकेंड स्टेप के ऊपर आंखें बंद रखना जब तक मैं ना कहूं. सेकेंड स्टेप के ऊपर सोचो कि आप अपने उन 5-6 दोस्तों के साथ क्या बातें करते हैं. आप अपने वो 5-6 दोस्तों के साथ क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है. नाउ हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, इज एलोनर रूजवेल्ट का एक कोट. एलोनर रूजवेल्ट सेज दैट, आई एम श्योर आप सबको याद आ गया आप जो 5-6 लोगों के साथ क्या बात करते हैं. प्लीज कम बैक, आंखें खोल दीजिए. प्लीज कम बैक, आंखें खोल दीजिए. एलोनर रूजवेल्ट का ये स्टेटमेंट सुनिए, वंडरफुल, ये लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला स्टेटमेंट है. एलोनर रूजवेल्ट कहती है, पुअर माइंड्स, ये जो दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल. जो पुअर माइंड के लोग होते हैं वो लोगों की बात करते हैं. तूने उसको देखा, तूने इसको देखा, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे चलती है, किसके साथ घूमती है. दिस इज पुअर माइंड्स वो डिस्कस पीपल. एवरेज माइंड्स वो डिस्कस इवेंट. वो एवरेज माइंड वाले इवेंट की बात करेंगे. व्हाट इवेंट की बात करेंगे? तूने देखा, पता चला ये साइक्लोन आने वाला था, तुझे पता चला इतने केसेस हुए कोविड-19 के, तुझे पता चला आज ये गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है. वो इवेंट की बातें करते रहते हैं. Now what happens is they always remain at average level कि वो इवेंट की बात करते हैं. But you know at the highest level, जो highest level की हम बात कर रहे हैं, they are the greatest people and they talk about the great minds discuss ideas. मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हम कैसे हाईएस्ट प्रमोशन और फास्टेस्ट इंक्रीमेंट कैसे लेके आएंगे? इसके लिए आपको
समझना पड़ेगा आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं ना। आप लोअर लेवल पे तब रह जाओगे, लोएस्ट लेवल के लोग होते हैं ऐसे लोगों के साथ दे डिस्कस पीपल। आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, आप कैसे लोगों के साथ हो। ऐसे लोगों के साथ है जो पीपल की बातें करते हैं, लोगों की बात करते हैं, चुगली करते रहते हैं, देन इनसे दूर रहना पड़ेगा। सेकेंड लेवल ऑफ पीपल, एवरेज लेवल ऑफ पीपल, दे डिस्कस इवेंट, बट द ग्रेटेस्ट पीपल आर दे डिस्कस आइडियाज। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, आप जिन लोगों के साथ हैं वो क्या डिस्कस करते हैं? पीपल, इवेंट्स एंड आइडियाज। इफ यू आर विद सच पीपल जो लोगों की बात करते हैं, इनसे क्विकली दूर जाए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो इवेंट की बातें करते रहते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उनको समझाओ, लेट अस टॉक अबाउट आइडियाज। बट इफ यू वांट फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट, ऐसे ग्रुप के साथ रहो जो डिस्कस करते हैं आइडियाज। ऐसा कहते हैं हम जैसे लोगों के साथ होते हैं वैसे हम हो जाते हैं। यदि अगर आपकी इनकम 5 लाख है, वो 5 लाख से इनकम आपको 25 लाख करनी है, उसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या है पता है? आपकी इनकम 5 लाख है, 5 टाइम्स अगर आपको बढ़ानी है, 5 लाख की इनकम 25 लाख करनी है, इसका सिंपल 1 लाइन सॉल्यूशन क्या है पता है? ऐसे 5 लोगों के साथ रहो जिनकी इनकम 25 लाख है, क्योंकि वो लोग चलते हैं, सोचते हैं, जितनी भी बातें करते हैं वो 25 लाख के लेवल की होती है। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू विथ, दैट विल डिटरमाइन योर माइंडसेट, दैट विल डिटरमाइन योर एटीट्यूड, और तब जाके आप फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट सोच पाओगे। सो ऐसा और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प हो? और प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती है? एंड लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पलीफाई फ्यू एग्जांपल्स। कि आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? दिस इज हाउ आई प्रूव, लेट अस प्रूव कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या अपने आप में डेवलप करें। कि आपको क्या दिख रहा है? सो बहुत सारे लोग ये कहेंगे, यू कैन टाइप ऑल्सो इन चैट, व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, ये डॉट्स हैं, ये सर्कल्स हैं, कलरफुल सर्कल्स हैं। बट वॉट एवर यू आर टॉकिंग, आप गलत नहीं है, यू आर राइट। बट ये जो आप बोल रहे हैं उसको कहते हैं नॉलेज। बट अभी हमने बात की, नॉलेज से काम नहीं चलता, आपको उससे आगे जाना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल आता है एक्सपीरियंस। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, देन यू कनेक्ट द डॉट्स। जब आप डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं, व्हेन यू कनेक्ट डॉट इट इज विथ योर एक्सपीरियंस, वो लोग एक लेवल और आगे आ जाते हैं। बट डू यू नो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सपीरियंस से ही सब कुछ मिल जाएगा। जितने लोग 10 साल के, जितने लोग बुढ़े हो गए, जितने लोग बहुत सारे ग्रे हेयर्स हो गए, वो लोग आगे बढ़ेंगे। यस, obviously experience helps, they are at the higher level than them, but experience पे रुकेंगे नहीं। there is one thing which is much better than that, you know what? knowledge के ऊपर आता है experience, और experience के भी ऊपर एक चीज आती है, तो आपको 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, and that is creativity। वो ही डॉट्स है, ध्यान से देखो, वो ही डॉट्स हैं, वही जगह है, बट इट इज क्रिएटिविटी एंड इट इज इनोवेशन। जहां पे कुछ नहीं था वहां पे कितना क्रिएटिव इमेज बना दिया। These people get the fastest promotion and highest increment. So what we need to understand is, यदि when we talk about creativity, what it requires, क्या आप क्रिएटिव हो, क्या आप क्रिएटिव चीजों से लगाव है, क्या आपको इनोवेशन अच्छा लगता है, क्या जो इनोवेटिव नई चीजें आ रही है, क्या आप उसको ग्रैब करते हैं, सीखते हैं। सो लोएस्ट लेवल पे कौन रह जाएंगे? मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, नई इनोवेशन आता है, बट दे डोंट यूज दैट इनोवेशन, वो लगा रह जाते हैं। दूसरे लेवल के लोग आते हैं जो इनोवेशन को यूज करते हैं, बट हाईएस्ट लेवल के लोग वो हैं जो खुद इनोवेट करते हैं। इफ यू कैन इनोवेट, जस्ट इमेजिन ऐसी कोई टेक्निक आप इजाद करते हो, एंड दैट टेक्निक इज यूज्ड बाय एंटायर इंस्टीट्यूशन, दैट टेक्निक इज यूज्ड बाय एंटायर यूनिवर्सिटी, दैट टेक्निक इज यूज्ड बाय द एंटायर इंडस्ट्री। ऑब्वियसली आई एम श्योर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको फास्टेस्ट प्रमोशन और हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हैव इनोवेशंस। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, ये दोनों, आई डोंट नो Who is your favorite, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, बट दोनों का फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। एक मूवी बनता है डॉन, और डॉन में द ओल्ड वन है अमिताभ बच्चन, द न्यू वन है शाहरुख खान। आई डोंट नो हु इज योर फेवरेट, बट एक पॉइंट आपने गौर किया, कितने लोगों ने दोनों मूवी देखा है? प्लीज चैट में लिखो, क्या आपने दोनों मूवी देखा है? यू नो व्हाट, ये पुराना डॉन था अमिताभ बच्चन का, उसके अंदर बात क्या हुई, उसके अंदर एक डायरी खो गई थी। जब एक मूवी नया बनता है डॉन 2 इस एज में, एंटायर स्टोरी इज सेम, कपड़े का कलर भी सेम रखते हैं, स्टोरी सेम रखते हैं, गाना सेम रखते हैं, बट यू नो व्हाट दे चेंज? अब डायरी नहीं खोई थी, डायरी के जगह पे सीडी खो गई थी। सो यू नो व्हाट, वो टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, मूवीज से सीखो, दे आर विद टेक्नोलॉजी। समटाइम्स साइंस फिक्शन मूवीज आर अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अगर आप इनोवेट करोगे, टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे, तो आपको फास्टेस्ट प्रमोशन और हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिल सकता है। What few more things which we can do is, let us take example of गांधी जी। गांधी जी को किसी ने कहा नहीं था
प्लीज आप आइए, हमारे इंडिया को आजादी के लिए काम दिलवा दीजिए. नो, ही डिड नॉट डू इट. He chose from, उनको दिल से ऐसा हुआ, अंदर से ऐसी उनको लगा कि I need to work for India, and then he works for, and he worked for the Indian freedom. जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो वो लाल किले पे ऊपर नहीं गए. आपको पता है वो लाल किले के ऊपर नहीं थे, वो कहाँ गए? Anyone knows वो कहाँ गए थे? He was not there at the Red Fort for flag hoisting. First day, पहली बार जब तिरंगा लहराएगा लाल किले के ऊपर, वो अपनी जवाबदारी स्वीकार के चले गए थे कोलकाता, क्योंकि 2 ग्रुप के अंदर शायद मारा मारी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. He took initiative and he went there. Now, what is the problem with us all is we don't take initiative. हम वही करते हैं हमको जो कहा गया होता है. Once you take initiative, आपको वो मिल जाता है जो किसी और को नहीं मिला. गांधी जी ने कभी नहीं कहा था मुझे फादर ऑफ नेशन बनाओगे तो मैं काम करूंगा, मुझे रिस्पेक्ट दोगे तो मैं काम करूंगा. नो, you don't do it. जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, जिन लोगों को प्रमोशन चाहिए, जिन लोगों को इंक्रीमेंट चाहिए, ये लाइन मैं हर बार कंपनीज में कहता हूं. इफ I might have trained in many MNC companies and people from 22 countries, बट ये एक लाइन में वहां से सीखा हूं, और वो ये है, आपको प्रमोशन, कई बार वो लोग ऐसा कहते हैं एक बार प्रमोशन मिल जाए ना फिर देखो मैं क्या करता हूं, एक बार इतना इंक्रीमेंट मिल जाए फिर देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास बहुत आइडिया है पर मेरे को एक बार ये प्रमोशन तो दे. You are wrong if you think like that. You know what is the fact? कंपनी ये देखती है एक बार आप प्रूव करके दो कि आप इस लेवल के व्यक्ति हो, तब बाद में आपको प्रमोशन मिलता है. सो प्लीज डोंट वेट कि आपको कहा जाए और आप करो, आपको प्रमोशन मिल जाए फिर करो. द कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नियम है फर्स्ट डू एंड देन गेट. दैट इज द नियम. सो व्हाट इज द लोएस्ट लेवल के लोग कौन है? जिनको काम दिया जाता है उसमें भी काम चोरी करते हैं. दैट इज द शॉकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरेज लेवल के लोग होते हैं, they do what is told, जितना कहा गया उतना कर देते हैं, and they, मुझे जितना बोला तो मैंने किया, but they will remain at average level. But who are at the highest level, these are the people who take initiative, जो अपने आप काम करते हैं, prove कर. So what is the corporate rule? Prove to get and not to get and then prove. So please understand this, to get the fastest promotion and highest increment, सामने से काम मांगना पड़ेगा, सामने से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. और you know what, ऐसा मिल जाएगा कि आपने जो गैस भी नहीं किया था. गांधी जी फोटो खिंचवाने के लिए लाल किले पे नहीं गए, बट बिकॉज ही टुक इनिशिएटिव, आज गांधी जी की फोटो सबकी जेब में रहती है. सो यू विल गेट व्हाट यू डोंट इवन हैव नॉट इमेजिन्ड, बट इफ यू टेक इनिशिएटिव दैट विल गिव यू हाईएस्ट प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट. नाउ व्हाट हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन इज पीपल हु आर एट पुअर इन वर्क दे रिमेन एट लोअर लेवल. ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड होता है जेडी, जो अपने जेडी को स्टिक करते हैं, दे फॉलो देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, उनके हिसाब से काम करते हैं, वो नीचे होते हैं. बट हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं हु वर्क बियॉन्ड देयर जॉब डिस्क्रिप्शन. जितने लोग कॉर्पोरेट में ये टेक्निकल वर्ड समझते हैं, व्हाट इज जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन. सो व्हाट इज टेकिंग इनिशिएटिव इज गोइंग बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, हायर प्रॉब्लम, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ योर बॉस, तब जाके फास्टेस्ट प्रमोशन एंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट मिलता है. नाउ ये we all know who they are. ये लोग कौन है? You know them, they are masons, कड़िया काम करते हैं. बट इतना काम करते हैं, पैसे ज्यादा किसको मिलते हैं? उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, और उससे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं आर्किटेक्ट को. पर मेहनत किसने की? ये मैसन्स ने. पर पैसे ज्यादा किसको मिले? आर्किटेक्ट को. डू यू नो व्हाई? Do you know why? That lowest level, they are known as कड़िया. And why do you know what they do is, वो सिर्फ, let me tell you, they are at 3 level. 3 लेवल का काम होता है. सबसे पहला लेवल का काम होता है कड़िया काम. दे आर मैसन्स. वो लोग दे यूज देयर हैंड, वो अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना मसल पावर इस्तेमाल करते हैं. बट मसल पावर यूज करने वाले लोएस्ट लेवल पे होते हैं, वरना मजदूरी करने वाले के पास पैसा ज्यादा होता है. सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इसके ऊपर आता है कड़िया, उसके ऊपर आता है कारीगर. डू नो हु आर कारीगर? जो यूज करते हैं हैंड एंड हेड, वो दिमाग का भी इस्तेमाल करता है. व्हेन यू यूज योर हैंड एंड हेड तो आप कारीगर बनते हैं, एक लेवल ऊपर जाते हैं. और डू यू नो हाईएस्ट लेवल क्या होता है? हाईएस्ट लेवल के लोग होते हैं जिनको कहते हैं कलाकार. ये कलाकार कहां से आता है? एनी गेस? हमने कहा कड़िया हैंड, कारीगर हैंड एंड हेड, बट ये कलाकार कौन है? ये कलाकार वो व्यक्ति है जो यूज करता है अपना हैंड, अपना हेड, एंड फाइनली एनी गेसेस? दे यूज देयर हार्ट. वो दिल से काम करते हैं. सो माय सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज, व्हाट डू यू डू? डू यू यूज योर हैंड, हेड, हार्ट? जब ये तीनों का इस्तेमाल करोगे तब आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे. एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा. ये तीनों चीज हम एवरी डे कर सकते हैं. एवरी वन कैन डू इट. कैसे?
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन. मैं बड़ौदा रहता हूँ, बहुत बार सूरत ट्रैवल करता हूँ. सो व्हेन आई गो इन ट्रेन, तो आप कैसे पता चलता है कि सूरत आने वाला है? एनी गेसेस? कैसे पता चलता है सूरत आने वाला है ट्रेन में है? तो ब्रिज आता है. कौन सी रिवर? तापी. जैसे ही वो ब्रिज आती है पता चलता है कि सूरत आने वाला है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कैसे हम हैंड, हेड एंड हार्ट की बात कर रहे हैं. एक माजी थे, उस माजी ने रिक्वेस्ट किया एक लड़के से कि इतना मेरा पूरा बड़ा बैग है, क्या मेरे सर के ऊपर रख सकते हो? आई वांट टू गेट डाउन एट सूरत. व्हाट इज यूजिंग जस्ट हैंड? ओके, वो बड़ा सा बक्सा लेके या बैग लेके माजी के सर के ऊपर रख दिया. दिस इज यूजिंग हैंड, बोला कर दिया. बट व्हाट इज यूजिंग हेड पता है? वो व्यक्ति माजी को कहेगा, माजी यहां से ये डिस्टेंस बहुत कम है, बट ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गाड़ी बाहर रोक देते हैं, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं. ही यूजेस हिज हेड एंड सेज, माजी आप जल्दी मत कीजिए, 5 जब प्लेटफॉर्म आएगा 5 मिनट रुक जाइए, प्लेटफॉर्म आने के बाद मैं आपके सर के ऊपर रख दूं. दैट इज यूजिंग हेड. बट डू यू नो व्हाट इज यूजिंग हार्ट? एनी गेस? हाउ डू यू यूज हार्ट इन दिस? वो आप हार्ट कैसे यूज कर पाओगे? हार्ट यूज करने का एकदम सिंपल तरीका है. वो अगर वो कहेगा, माजी आप चिंता मत कीजिए, लेट मी, आई विल, मैं ये सामान उठा के आपको नीचे दे दूंगा. दैट इज यूजिंग योर हार्ट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आप क्या यूज करके काम कर रहे हैं? सबसे नीचे लेवल वाले लोग होंगे जिनको कहा है वो कर देते हैं, मजूरी करते हैं, वो है दे यूज देयर हैंड. लोएस्ट लेवल, एवरेज लेवल के लोग कौन है? जो हैंड भी यूज करते हैं एंड हेड भी यूज करते हैं. एंड हाईएस्ट लेवल के लोग वो है जो हैंड, हेड एंड हार्ट यूज करते हैं. व्हाट डू यू पुट that in your work will determine कि आपको fastest promotion और highest increment कैसे मिलेगा. Now the last question for today is, we are talking about all these things, promotion and increment, but आप जिस level के ऊपर है वहां से आपको इनकम डबल करनी है तो क्या करोगे? कितने लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने में कि आपकी इनकम जितनी है वहां से अगर आगे जाना है, यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो क्या करना है? रॉबिन शर्मा सिर्फ एक लाइन कहते हैं, 1 लाइन आंसर. मैं आपको एक लाइन में कहूंगा, यदि आपको आपकी इनकम डबल करनी है 21 साल में तो क्या करना है? 1 लाइन आंसर. आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग इट? 1 लाइन आंसर. रॉबिन शर्मा सेज, टू डबल योर इनकम, ट्रिपल योर नॉलेज. जिस टाइम पे आपका नॉलेज ट्रिपल हो गया ना, उस टाइम पे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो. इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपके हो गए. सो व्हाट वी सिंपली नीड टू डू इज लर्न एंड लर्न. जब आप बहुत सारा लर्न कर दो फिर क्या करना है? स्क्रीन के ऊपर गौर से देखिएगा. व्हेन यू लर्न एंड लर्न, बाद में क्या करना है? लास्ट थिंग इज just drop the L. जब आपने L drop कर दिया, what remains is earn. So first learn and then earn. So what is the difference between those who get fastest promotion and highest increment? Average level के लोग होते हैं ना, अब देखो कैसे वीडियो देखेंगे, वो वाव वाले एंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखेंगे. बट जो लोग हाईएस्ट इंक्रीमेंट और फास्टेस्ट प्रमोशन वाले लोग होते हैं, वो वीडियो भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कैसे देखेंगे? हाउ वाले. आप अपने आप से पूछो, आप कैसे वीडियो देखते हो? क्या आप टिकटॉक के वीडियो देखते हो? क्या आप एंटरटेनमेंट के वीडियो देखते हो? क्या आप फैक्ट्स के वीडियो देखते हो? या फिर आप नॉलेज की वीडियो देखते हो, हाउ के वीडियो देखते हो, टेक्नोलॉजी के वीडियो देखते हो ना? आप ये भी एक चीज चेक करना, आपने जितनी यूट्यूब, आपको पता है आपका यूट्यूब आपको बताता है आपने कौन सी चैनल सब्सक्राइब की है. जस्ट एक बार आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट देखना, आप कैसे व्यक्ति हो वो चेक करना. जस्ट देख लो आप कैसी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स के नाम क्या होते हैं, आपके दोस्त कैसे, उनसे पता चल जाएगा आप किस तरह का व्यक्ति हो. सो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट? वाओ वाले, फैक्ट वाले, या हाउ वाले? जो लोग हाउ वाले वीडियो देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू, आई वांट टू सी, आप देखना एक बार यूट्यूब में आपकी कैसे सब्सक्रिप्शन है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो चैनल्स जो बात करते हैं पॉजिटिव ऑन योर वर्क. आप क्या कर सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना टेक्निकली. टुडे आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ विजडम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसी बात कर रहे हैं. ऐसे वीडियो अगर आपको देखना है, प्लीज फॉलो चैनल्स लाइक मी. आई एम नॉट यू कैन फॉलो माय चैनल. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हाउ वाले. माय रिक्वेस्ट टू यू इज फॉलो माय चैनल, फॉलो दोस्त चैनल जो हाउ की बात कर रहे हैं. then you will get the fastest promotion and highest increment. Last level की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे कैसे वीडियो देखते हैं, कैसे कैसे कंटेंट देखते हैं. Now that is what we want to say is, if you want to get the fastest promotion and highest increment, इतनी चीजें आपको करनी है. If you will do that, you will get the fastest promotion and highest increment. But कई बार ऐसा होता है, ऐसे instances होते हैं जब वो काम कर रहे हैं, but because of few instances उनका motivation कम हो जाता है. Because of that motivation वो काम नहीं कर पाते हैं. तो today I will share few cases. इन केसेस में आपको क्या करना है? इट इज आउट ऑफ माय 14 years of experience with corporate. I'll tell you. फर्स्ट केस ये है, यदि बॉस आपको ऐसा इलीगल अनएथिकल काम करवाए तो क्या करना है? बॉस मेक्स यू डू समथिंग विच इज रॉन्ग
इलीगल है, अनएथिकल है, तो क्या करना है। यहाँ पे भी हम 3 लेवल की बात करेंगे। व्हेन बॉस मेक्स यू डू दैट थिंग, फर्स्ट इज, सबसे लोएस्ट लेवल का काम क्या होगा, जब आप कुछ बोलते नहीं हो कर देते, दैट इज यू रिमेन एट द लोएस्ट लेवल। एवरेज लेवल के ऊपर आप रिफ्यूज करते हो और उनको वार्न करते हो, सर दिस इज रॉन्ग, आई विल नॉट डू इट, एंड दिस इज रॉन्ग, वी शुड नॉट डू इट, डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज एवरेज लेवल। आप उनको रिफ्यूज करो, वार्न करो। अगर आप जॉब बचानी है, शायद रिफ्यूज एंड वार्न करने के बाद शायद कर दिया कभी कभी तो ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट सोल्यूशन। व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? अगर आपको कंपल्सरी करवाते हैं, यू डू नॉट वांट टू डू इट, अगर आपको कंपल्सरी ऐसा काम करवाया, प्लीज कीप अ प्रूफ कि मेरे पास ऐसा काम, आप मेल लिख दो, सर एज पर योर इंस्ट्रक्शन, एज पर योर ऑर्डर एंड गाइडेंस वी आर डूइंग दिस। आप हर एक प्रूफ रखो, वरना इफ बॉस रेजेस हिज हैंड, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो आई वांट टू टॉक अबाउट फ्यू केसेस कि यदि ऐसा हो तो क्या करोगे, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स ये मैटर करती है। व्यक्ति का माइंड इतना डाइवर्ट कर देती है, इतना डिस्टर्ब कर देती है। आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट 3 डिफरेंट केसेस। पहला केस, इलीगल काम करा, इफ यू डू इट, लोएस्ट लेवल, वार्न एंड रिफ्यूज, सेकंड लेवल। बट इफ अगर जॉब बचानी है, इफ यू हैव टू डू इट, तो एटलीस्ट क्या करो, प्रूफ रखो कि ये उनके कहने से किया है। सेकंड केस विच आई वांट टू टॉक इज बॉस प्लेज फेवरेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉस प्लेज फेवरेट? काम आपने किया है, बट प्रमोशन इंक्रीमेंट किसी और को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुआ होगा। ऐसे केस में क्या करें? वेरी इंटरेस्टिंग केस। और बहुत बार जितनी कंपनी में जाता हूँ, मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये प्रॉब्लम होता है, सर मेरे को काम का क्रेडिट ही नहीं मिलता, क्रेडिट तो वो ले जाता है, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिलता, इंक्रीमेंट तो इसको मिल जाता है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन तो इसको मिल जाता है, व्हाट डू आई डू? नाउ व्हेन बॉस प्लेज फेवरेट, व्हाट डू यू डू इज one of my techniques which I use and train people is, you know what happens. For example, 2018 में आपका काम इस लेवल का है, आपका कॉम्पिटिटर है उसका काम थोड़ा कम है, आपका बॉस ने ही प्लेस फेवरेट और जिसका थोड़ा नीचे वाला काम था उसको प्रमोशन दे दिया। मिलना किसको चाहिए था? आपको। मिला किसको? उसको। बिकॉज ऑफ दैट हमारा मोटिवेशन कम हो गया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे बताएं? लेस मोटिवेशन, सेम वर्क। अब क्या हो गया? अब वो बॉस को देने का सेम है, अब इजीली वो दे पाएगा इसको। 2019 में ये लेवल आ जाता है। दूसरे साल भी आपको ऐसा हुआ कि मैं भी उसके जितना ही काम करता हूँ, ये भी मेरे जितना काम करता है, बट मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, बॉस प्लेस फेवरेट, मेरे को तो काम ही नहीं करना है इस कंपनी में, आई डोंट वांट टू, जब तक दूसरा ना मिले तब तक यहाँ पे रहूंगा। तीसरे साल 2020 में क्या होगा? आप अपना काम नीचे कर दोगे, अब बॉस को खुला मैदान मिल गया, बॉस भी अपने बॉस को बोलेगा, देखा मैंने बोला था इसको, है ना, लुक एट हिम नाउ, ये लंबी रेस का घोड़ा था इसलिए मैं इसको आगे ले जा रहा था। यू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन? पहले इस लेवल पे था ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन? 3 लेवल। द 3 लेवल आर, सबसे नीचे का क्या होगा? बॉस ने किसी को प्रमोशन दे दिया, किसी को इंक्रीमेंट दे दिया जो डिजर्व नहीं कर रहा था, आप अपना लेवल रिड्यूस करो, दैट इज नोन एज द लोएस्ट लेवल रिड्यूसर परफॉर्मेंस। व्हाट इज एवरेज वर्क? आप अपना लेवल बरकरार रखो, वो इतना बरकरार रखे हर बार इसको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, दैट इज द एवरेज लेवल, या फिर आप सेम लेवल पे आ जाओ। बट डू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच यू शुड डू? एनी गेसेस? व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच यू शुड डू? अपना लेवल कम नहीं करना है, क्या करना है पता है? The less level is, if this much was the gap इतना ज्यादा कर दो, इतना ज्यादा कर दो कि बॉस हिम्मत भी ना कर पाए किसी और को प्रमोशन या इंक्रीमेंट देने की आपकी जगह के ऊपर। क्यों? उसको भी रिपोर्ट करना पड़ता है किसी को, एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज द आइडियल वे इज गिव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इतना लेवल का गैप था ना, इतना बड़ा गैप कर दो, अब वो हिम्मत नहीं कर पाएगा थोड़ा मैनिपुलेशन करने में। इतना छोटा गैप में वो मैनिपुलेट कर सकता है, बट व्हेन द गैप इज ह्यूज तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज व्हाई माय रिक्वेस्ट इज, जब व्हेन बॉस प्लेस फेवरेट, डू दिस। कई बार दिस इज एवरीवन, जितने लोगों को मैं मिलता हूं उनमें से शायद 70 to 80% ये प्रॉब्लम करते हैं, एंड दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच आई वुड रेकमेंड। इन द फाइनल केस इज, आपके बॉस के ऊपर कोई है ही नहीं, या बॉस भी ऐसा है जो बहुत परेशान कर रहा है, आपका क्रेडिट ले रहा है, आपको हैरेस बहुत कर रहा है, और आप उसके ऊपर भी, है ना, या फिर यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन। व्हाट यू नीड टू डू? 3 लेवल। बॉस हैरेसेस यू, आपको बहुत प्रॉब्लम, आपका क्रेडिट ले रहा है, सबसे पहला है यू डू नथिंग, इज लोएस्ट लेवल। आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा काम में, आप अंदर से मर रहे हैं, अंदर से आपको एक कीड़ा खा रहा है, यू आर डिससेटिस्फाइड, एंड दैट इज व्हाई यू डू नॉट परफॉर्म वेल। आपके काम में दिखता है, वो गुस्सा आपके घर पे निकलता है। सो इफ यू डोंट डू इट, आप लोएस्ट लेवल पे रहोगे। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? एक्सेप्ट इट। व्हाट इज एक्सेप्ट इट? यार मेरा बॉस तो ऐसा मेरे को क्रेडिट नहीं देता, बट स्टिल आई वांट टू वर्क, स्टिल आई वांट टू परफॉर्म, स्टिल आई वांट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही रहने वाला है, तो आप एटलीस्ट आप अपना काम पॉजिटिवली कर पाओगे। बट यू नो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल? द हाईएस्ट लेवल इज चेंज।
आपके बॉस के ऊपर भी कोई होते हैं, यू गो देयर एंड चैलेंज, बट ये चैलेंज करने में क्या होना चाहिए, यू शुड हैव प्रॉपर डेटा विथ यू, यू शुड हैव प्रॉपर प्रूफ विथ यू। जब आप ये लेवल रखोगे, इफ यू कैन चेंज, इफ यू हैव द करेज टू फाइट, then you will be able to go at the next level। वरना if you don't do anything, अंदर से आपको इतना डिससेटिस्फेक्शन होगा, आप अपना काम बेस्ट नहीं दे पाओगे। जब आपका बेस्ट नहीं देते हो, ऑब्वियसली आपके रिजल्ट आउटकम में ऊपर रिजल्ट आएगा, आपके बिहेवियर में रिजल्ट आएगा, एंड दैट इज व्हाई इट अफेक्ट्स यू नेगेटिवली। सो माय रिक्वेस्ट इज व्हाट यू शुड डू इट, एक्सेप्ट चेंज। एंड द फाइनल थिंग व्हिच आई हैव नॉट केप्ट इट ओवर हियर, बिलीव मी, आई वांट टू शेयर यू वन थिंग। ये जितनी चीज मैंने यहाँ आपको शेयर की है, ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव की है या ज्यादातर चीजें इंप्लीमेंट की है। आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव डन एक्सेप्टेंस, आई हैव डन चेंज, एंड देयर इज वन मोर थिंग बियॉन्ड दिस एक्सेप्ट चेंज इज क्विट। यदि आपको ऐसा लगे इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्कोप नहीं है, देन यू कैन क्विट, और you can go to some other organizations, or you can be self-employed. That is the way how you perform your best. That is the way how you get the fastest promotion and highest increment. I'm very much thankful to all of you. That was, I just wanted to share ये negative environment के अंदर positive बातें करने की, 3 लेवल में बात करने की, practical level में I wanted to talk 1, 2 and 3 level. I hope this level which I have understood, which I have experience, I just wanted, मैं चाहता था कि इनको एक I put it on paper and share it with as much people as possible. So thank you so much for this. Now we are open for questions. I would request host to please take questions. Thank you Nirav sir. It was a nice experience to hear you. पूरे आपके जो सेशन था, मतलब ये काम के रिगार्डिंग जितने भी आपने डिस्कशन किए, उसमें से 2-3 बातें मैंने खास नोट की है। एक तो आपने बोला कि एक लीडर वो है, सही में वो लीडर वो है जो दूसरी लीडर तैयार करता है। तो इट इज ये पूरा सेंटेंस हम हमारे प्रिंसिपल सर में देख भी सकते हैं। तो ही इज अ ग्रेट लीडर, विल टेक दिस। और सर ने एक दूसरी बात, मतलब सर के जो भी काम है, और जिसमें से हमने एक बात, और आपके पूरे सेशन में से जो बात मैंने सिर्फ कोट की है वो ऐसी है कि जब आप काम पर जाओ तो ऐसे जाओ कि आप मंदिर में जा रहे हो। जब आप काम पर जाओ तो ऐसे जाओ कि आप मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि आपका काम आपको वो देता है जो आप मंदिर में भगवान से मांगने जा रहे हो। और यही बात हमने हमारे सर से सीखी है। तो क्वेश्चनिंग सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चिराग सर से। चिराग सर। हेलो हेलो। यस चिराग सर। हाँ, एक क्वेश्चन था, आपने बात की परफॉर्मर और लीडर की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या जरूरी होता है, परफॉर्मर होना जरूरी होता है या लीडर बनना जरूरी रहता है? ऑर्गेनाइजेशन को दोनों की जरूरत होती है। यू नीड समवन टू परफॉर्म एंड यू नीड समवन टू लीड देम, समवन टू गाइड देम। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो, वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। सो दोज हु आर परफॉर्मर वो नीचे रहते हैं, दोज हु आर लीडर वो ऊपर रहते हैं। अब ये नीचे से ऊपर कौन जाएंगे? जो खुद का भी काम कर सके और दूसरों के पास भी काम करवा सके। एक वर्ड हम बहुत बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करते हैं, एंड दैट वर्ड इज गो गेटर। व्हाट इज गो गेटर? A person who can get work done from others by inspiring them, by motivating them. So organization के लिए 100% दोनों टाइप के लोगों की जरूरत होती है। हाँ, आपको ऊपर जाना है तो आपको परफॉर्मर के साथ लीडर भी बनना पड़ेगा। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस काम की अभी तक कोई डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई है, तो उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है? सो जब हम बात कर रहे थे इकिगाई की, तो इकिगाई में वो चारों पॉइंट थे, यू लाइक, यू लव, पीपल नीड एंड पीपल आर रेडी टू पे। सो 2 रास्ते हैं, आइदर यू डू समथिंग जो लोगों की नीड है, या फिर आप ऐसा कुछ करो जो डिमांड क्रिएट करो। वो डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या व्हेन वी टॉक टू एंटरप्रेन्योर्स, हम उसको बात करते हैं वी क्रिएट मोर डिमांड। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी वो होती है जो एग्जिस्टिंग डिमांड में काम करता है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वो है जो डिमांड क्रिएट करता है। क्या आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो? एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इस जियो।
जब ये जियो नहीं आया था तो कितने लोग इंटरनेट यूज करते थे, कितने लोग फोन यूज करते थे, स्मार्टफोन, बट बिकॉज जियो केम इतने फ्री में दे दिया, अब उन्होंने नंबर ऑफ यूजर्स ही बढ़ा दिए। दूसरा एग्जांपल है दिव्य भास्कर का, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जब दिव्य भास्कर आया, आप इमेजिन कीजिए न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इतनी स्लो ग्रो करती है, एवरी ईयर 1% 2% चेंज, ज्यादा चेंज नहीं आता, बट ये सिर्फ एकमात्र ऐसा न्यूज़पेपर एजेंसी है जो डे 1 के ऊपर नंबर 1 बन जाता है। Now, not only this, वो इतने सारे लोग नई डिमांड क्रिएट करता है, वो नई डिमांड क्रिएट करने के बाद उसका फायदा दूसरे न्यूज़पेपर को भी मिलता है। सो आइदर ऐसी चीज पकड़ो जो लोग डिमांड कर रहे हैं, या फिर आप ये चैलेंज ले लो कि आप डिमांड क्रिएट करोगे। डिमांड क्रिएट करने की स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। सो इफ यू हैव नॉट रेड इट, प्लीज रीड इट, जिसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। थैंक यू वेरी मच। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैरियर रिलेटेड है कि हमारे यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कॉमर्स या तो साइंस या तो आर्ट्स सिलेक्ट करने में, वो 10th के बाद हो जाता है। अभी मेजोरिटी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद साइंस ले लिया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मार्केट में भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी। साइंस के बाद इंजीनियरिंग कर लिया। आज सिचुएशन ऐसी है कि इंजीनियरिंग साइड के ऊपर कोई डिमांड ही नहीं है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जब उन्होंने साइंस लिया था, साइंस बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जब अब उसको साइंस अच्छा ही नहीं लगता। जब इंजीनियरिंग होने के बाद उसको पता लगा कि ये चीज़ उसके लिए है ही नहीं, या तो फिर मतलब उस टाइम पे अच्छा लगता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब वो अच्छा नहीं लगता बिकॉज ऑफ ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये इसको हम कहते हैं कहानी घर घर की। एवरी स्टूडेंट फेसेस दिस प्रॉब्लम। और मैं इस क्वेश्चन में दो चीजें देखता हूँ, एक ऐसा है जो इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन ये है उनका इंटरेस्ट उठ गया। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों का आंसर मैं अलग अलग तरह से देना चाहूंगा। मैंने थोड़ा टाइम करियर काउंसलिंग भी किया है, बहुत लोग बातें करने आते हैं, मैं उनसे एक बात हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, बेटा आप जो ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, वाई। आज मैंने एक एग्जांपल दिया था, गाडर या प्रवाह तो नहीं है, या वो भेड़ चाल तो नहीं है, लोग ले रहे हैं, मार्केट में चल रहा है इसलिए लेना है। सो समटाइम्स फर्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर पैशन, हाउ टू आइडेंटिफाई कि मेरा इसमें से इंटरेस्ट ना उठे। सो उसके दो रास्ते, वन इज योर इनर कॉलिंग, अंदर से ऐसी आवाज आती है कि नहीं, आई वांट टू डू दिस। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, जब से मैं पढ़ रहा था तब से मुझे जितनी बार मैं सेशन अटेंड करता हूँ, लेक्चर अटेंड करता हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ, हर बार अंदर से मुझे लगता है यार आई कैन स्पीक बेटर देन दिस। यहाँ पे ये एग्जांपल देना चाहिए था, यहाँ पे ये बोलना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए था, यहाँ पे ऐसी बात करनी चाहिए, यहाँ पे पीपीटी ऐसे रखनी चाहिए थी। सो अंदर से रोज ऐसी आवाज, एवरी डे आई फेल्ट दैट दिस कैन बी बेटर, इसको बेटर कर सकते हैं, एंड आई वांट टू टीच, आई वांट टू शेयर माय नॉलेज। तो एक रास्ता है यू आइडेंटिफाई बाय योर इनर कॉलिंग, उसको पर्सनल कॉलिंग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। बट 95% लोगों को, शायद उससे भी कम लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, 95% लोगों को इनर कॉलिंग नहीं आता। तो क्या करते हैं, देन देयर आर फ्यू टेस्ट विच आर अवेलेबल। एक टेस्ट जिसका नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है डीएमआईटी टेस्ट। डीएमआईटी टेस्ट ऐसा होता है जो जितने कम लेवल के एज के बच्चे होंगे उनका डीएमआईटी टेस्ट करवाएंगे तो उनका इनर अर्ज, नेचुरल टैलेंट पता चलेगा, और जब आप उनके डायरेक्शन में उनको ले जाओगे तो उनको ऑलवेज वो पैशन रहेगा। तो दैट इज वन वे। अगर वो नहीं किया, थोड़े बड़े हो गए, देन यू डू साइकोमेट्रिक टेस्ट, देन उससे भी बड़े हो गए फिर एडजस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। नाउ सो दैट इज व्हाई व्हाट यू नीड टू डू, जब आप एक फील्ड ले रहे हो जितना अर्ली डिसीजन लो उतना अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन क्विकली डॉक्टर चिराग आई टेक इज, इंडस्ट्री में वो डिमांड ही नहीं रही तो बेचारा क्या करे। बट प्रॉब्लम इज हम आज के लेवल की सोच के लेते हैं। आप सोचो आप जॉब में कब जाओगे, नेक्स्ट 7 years के बाद, 2 years 12th, 3 years ग्रेजुएशन, 2 years मास्टर्स, तो 2, 3 and 3 is 7 years के बाद क्या डिमांड है वो देखना है, और 7 years पे तो आप करियर चालू करते हो, तो 20 years में क्या होगा, 15 years के बाद क्या होगा, इतना सोचोगे तब जाके आपको कोर्स सिलेक्शन करना है। प्लीज डोंट सिलेक्ट कोर्स के आज क्या चल रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ कोर्स के 15 साल के बाद क्या चलेगा, 20 साल के बाद चलेगा। इसको करियर कहते हैं। आज देख के करते हैं उसको कोर्स कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड करियर। सो दैट इज हाउ यू टेक द डिसीजन। सो डोंट फोकस ऑन कोर्स, फोकस ऑन करियर।
अच्छा, जितने लोगों को ये इंटरेस्ट पूछ नहीं रहे हैं बट उनका ये क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट 15 साल में क्या चलेगा, तो मैं भी बता देता हूँ। नेक्स्ट 15 साल में चलेगा ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो चीज में अगर आपको मास्टरी आ गई, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नेक्स्ट अब 20 साल तक चलने वाला है आराम से। सो दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हमारे यहाँ पे इंडिया में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो परफॉर्मेंस और जो इंसेंटिव रहता है वो बेस्ड ऑन एज और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रहता है, ना कि कोई परफॉर्मेंस वहाँ पे कोई है ही नहीं, एज या तो एक्सपीरियंस। तो ऐसे लोग कि जिन लोगों के एज के ऊपर या तो फिर मतलब जो भी परफॉर्मेंस या तो इंसेंटिव काउंट होगा वो एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी पैसा बढ़ता जाएगा, तो Right. वहां पे प्रोडक्टिविटी या तो फिर उन लोगों का मोटिवेशन हाई करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग आप जो ये कह रहे हैं ऐसा केवल और केवल दो जगह पे होता है। एक गवर्नमेंट, वहां पे भी थोड़ा चेंज आ रहा है, बट एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संस्था। वहां पे एज को, उम्र को ज्यादा, तजुर्बे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट दिस इज, ये अब कम हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज बढ़ रही है। ये हमारा सेशन है वो उनके लिए नहीं है, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। सो इफ यू आर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर अब जगह पे है जहां पे परफॉर्मेंस को प्रावधान दिया जाता है 90%। पॉइंट नंबर 2, यदि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पे ओनली एंड ओनली, जैसा आपने बताया, एक्सपीरियंस यानी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन प्रावधान दिया जाता है, वहां पे भी ये सब अप्लाई करो। क्यों बताए? आज यहां काम कर रहे हो, यहां के बाद कहीं तो जाओगे, कुछ सीखा हुआ, कुछ किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। एंड लेट मी टेल यू, यदि आपके पास टैलेंट है और आप ऐसा वेट कर रहे हो इस कंपनी में नहीं होगा, नेक्स्ट कंपनी में करूंगा, तो प्रॉब्लम क्या होता है, नेक्स्ट कंपनी में भी यही प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब नेक्स्ट कंपनी में जाओगे तो हमारे गुजराती में कहते हैं कागड़ा वद्दे काड़ा होए, वहां पे भी यही प्रॉब्लम है। एंड देन यू डोंट डू इट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू डोंट यूज योर टैलेंट, आपका टैलेंट चला जाएगा, आपका टैलेंट गायब हो जाएगा। सो जहां हो ना, वहां यही सोच के काम करो कि फास्टेस्ट प्रमोशन और हाईएस्ट इंक्रीमेंट चाहिए। एंड देन व्हेन यू स्विच, व्हेन यू जंप, तो ये एक्सपीरियंस आपको काम लगेगा। गवर्नमेंट, शायद आपने आज वो इंट्रोडक्शन में भी कहा, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज में मैं जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, वहां उनको मैं क्या कहता हूँ, उनको तो पता ही है कि यहाँ मैं 10 साल तक या 5 साल तक यह क्राइटेरिया है, उसके बाद ही मुझे प्रमोशन मिलेगा। उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, पता है क्या कह के, सब आप जिस दिन रिटायर हो जाओगे तो आपको लगता है 58-60 एज में आप काम नहीं करोगे, काम तो कर पाओगे नेक्स्ट 5 years 10 years। सब ऐसा कुछ काम करो, इतना अच्छा काम करो, लोग आपको जाने आपके काम से। वो बोलता है गवर्नमेंट तो देती नहीं है कुछ। आई सेड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, व्हाट आई वांट टू टॉक इज, जब आप रिटायर हो जाओगे तब लोग आपको कंसल्टेंट के तौर के ऊपर भी रखेंगे यदि आपने अच्छा काम किया है तो। सो प्लीज वेरेवर यू आर, ये जितनी चीज मैंने बताई ना, इवन सीनियोरिटी के बेस्ड है, प्लीज गिव योर बेस्ट। जब यहां से बाहर निकलोगे दूसरी जगह काम लगेगा, रिटायर हो जाओगे तो कंसल्टेंट के तौर पे काम कर पाओगे। एज ए कंसल्टेंट ओनली टैलेंट मैटर्स, नथिंग एल्स। ओवर टू यू मेहुल सर। Thank you, Chirag sir. I have another question list. May I proceed, sir? Please. Okay. I have two similar questions, one from Siddhi Desai and next from Nirav Shah. They are asking, sir, many times working hard, there is no appreciation, so it will reduce our confidence. And the similar question is, I had given so many times new suggestion, but boss is not accepting. So what we have to do? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप चैलेंजिंग जगह पे हैं और चैलेंजिंग बॉस के साथ हैं। लोग, ये हर एक जगह पे होने वाला है एंड वी नीड टू लिव विद दिस। आप ऐसा मत समझो कि आपने थोड़ा अच्छा काम किया, थोड़े अच्छे सजेशंस दिए तो आपको बहुत, यानी आपको रेड कारपेट मिल जाएगा, आपकी तारीफ बहुत होगी। मैच्योरिटी लेवल ऑफ इवन अवर बॉसेस इज डिफिकल्ट, सब जगह अच्छे बॉस नहीं होते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन टेलिंग। यदि आप नहीं कहोगे तो आपको अंदर दिल से ऐसा लगेगा मैंने काश कह दिया होता तो।
सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप बार बार कह रहे हो तो भी नहीं सुन रहे हैं, इट मीन्स दे डोंट डिजर्व यू. आई गिव यू थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस. फर्स्ट इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट कर लो कि ये बॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है. दूसरा, चेंज. चैलेंज हिम, गो टू हिज बॉस विद डॉक्यूमेंटेशन. मैं इतनी बार ये कह रहा हूं, फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो, आपके बॉस के भी बॉस तो होते ही हैं. हिम्मत रखो और चैलेंज करो अपने बॉस को, गो टू देयर बॉस. एंड थर्ड, अगर आपको लगता है कि ये भी कुछ नहीं होगा, क्विट एंड गो टू डिफरेंट कंपनी. या फिर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, खुद कुछ करो अपने दम के ऊपर. सो चेंज, फर्स्ट इज accept, challenge and quit. These are the three options which you can use. Okay. Next question is, जो बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो टॉप या मिडिल लेवल की कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ये लोग कैसे जान पाए, मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की आइडियाज भी उनके पास हैं तो भी ये लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? This is purely organizational problem. ये उस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है कि वहां सिस्टम ही नहीं है लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन मिले. विथ माई एक्सपीरियंस, और ये जो भी पूछ रहा है, आई एम श्योर दे मस्ट बी एट लोअर लेवल, इसलिए उनके दिमाग में ये विचार आ रहा है. दुनिया के सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लोएस्ट लेवल का आदमी ही बता सकता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वो वर्क कर रहा है. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बॉस यहाँ पे सुन रहे हैं, प्लीज एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज हैव अ सिस्टम के लोएस्ट लेवल का एम्प्लॉय भी वो सजेशन दे पाए. सो इफ देयर इज नो सिस्टम, देन यू रिक्वेस्ट फॉर द सिस्टम. इफ देयर इज नो सिस्टम, you write to the boss's boss. If you, this is the only problem, this is the only solution which you can do. Otherwise, ये this is what we need to understand. Lower level के एम्प्लॉय को अगर नहीं मौका दिया जाता तो कंपनी का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरे जो टाइटल है हमारा वेबिनार का, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर के क्या क्या व्यूज होंगे? गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम टेलिंग यू, पीपल एंड थिंग्स आर चेंजिंग. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊंगा एंड देन आई विल गिव यू द आंसर. 2 दिन पहले मुझे घर पे नया इंटरनेट कनेक्शन लेना था, BSNL में गए. यू नो व्हाट एम्प्लॉय से, आई वांट इट इमीडिएटली. उसने मुझे ये कहा, कल आप है ना 10:15 बजे आ जाना. मैंने पूछा ऑफिस कितने बजे खुलती है? बोले 10 बजे. तो बोले 10 बजे आ जाऊं? नहीं, वो तो मैं 10 बजे घर से निकलूंगा, 10:15 बजे तक आ जाऊंगा, तब आप आना. Now this is the level at which government companies, government employees are working. So दोनों लेवल पे प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की प्रमोशन इंक्रीमेंट पॉलिसी और दूसरा एम्प्लॉय का एटीट्यूड. बट बिलीव मी, दैट इज चेंजिंग. आज की तारीख में आप पार्लियामेंट में जाओ, 9 बजे लोग वहां पे आ जाते हैं. इट इज बिकॉज मोदी साहब इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज. शायद वहां पे अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम लाइक कॉर्पोरेट नहीं आया, बट वहां पे परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा, टाइम पे आना पड़ेगा. एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन. कितने फाइल गुम हो गई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है. सो परफॉर्म करना वो ऑल्टरनेटिव नहीं है. हाँ, फास्ट प्रमोशन वो अभी धीरे धीरे आएगा, वो कॉर्पोरेट कल्चर अभी आया नहीं है, बट मोदी साहब रहेंगे तो वो भी आ जाएगा. Okay. Next question is, sometime money matters also do its work and right person doesn't get promotion, then what they have to do? Money matter also works. Money matters also do its work and right person doesn't get promotion. So what have to do? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. पैसा मैटर मीन्स मुझे सर मैं जैसे समझ रहा हूँ कि पैसे से भी कुछ बात हो सकती है जिससे राइट पर्सन को प्रमोशन नहीं मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करें? पैसे देके, इज इट लाइक दैट? यस, पैसे देके कुछ और काम हो जाता है, मतलब जिसको प्रमोशन मिलना था उसको नहीं मिला. हाँ. तो उसके लिए यू आर एट रॉन्ग. यू आर चैलेंज. वो एक ही सिंपल आंसर, एक्सेप्ट, चेंज या क्विट. दैट इज द सिंपल आंसर. Okay, so my question list is over. So thank you for the day, and I'm requesting Dr. Mayank Soda sir to propose vote of thanks. Hello. Clear, man. Audible, sir? Yes. Okay. For vote of thanks, I would like to thanks to our Jeevan Jyot Trust Parivar
And on behalf of Amroli College, I, Dr. Mayank Soda, for a vote of thanks. First, I thanks to the principal sir to giving this, to organize and to manage all this technically, and to get hirely, put it the all technical equipments, and to set up all these things. We get now YouTube, we get on Facebook and tweet, and next webinar on Twitter, and some on the Microsoft Team, Meet, everything, WebEx. We'll try level best. So I say thanks to the principal sir to get organized this thing, and thanks to the our today's speakers. Actually time is 5 o'clock, but still you are with us at 5:34. You are not saying a single word कि sir बस time हो गया अभी मुझे जाना है, and you are still answering our questions, and I mean to the participate questions. Thank you sir, Nirav sir ji, आपने अपना time भी दिया, and you answered all the questions. I thanks to the participate. They really, we are open only 1 2 day link, Google Meet, and they started on again 3 o'clock, and again accepting. And our Facebook viewers and YouTube viewer, even आपका जो स्पीकर सर है नीरव सरजा का भी YouTube है और Facebook भी है, लाइव है, उस पे भी व्यूवर्स है, और उस पे भी देखने वाले लोग वहाँ पर भी है. तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं तरीके से एटलीस्ट टच होना चाहते थे कि ये सेशन जाए. मैंने बहुत सारे लोगों की कमेंट्स देखी, कहीं कमेंट्स वहाँ पर भी आए कि सर जरा आप ये सेशन ऐसे रखते रहो ताकि हम आपके साथ जुड़ते रहें. तो पार्टिसिपेशन जो लोग कर रहे हैं तो उनको भी मैं सहे दिल से मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करूँगा. एंड to those who actually engage with this organizing, तो मैं उनका भी, and every जो भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इसको साथ जुड़े हुए हैं उसको भी शायद दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच टू ऑल. Thank you Mayank sir for vote of thanks. Again we are warmly thanking you all the participants for tremendous response for 12th webinar. Again we are arranging 13th webinar for you on Tuesday at 11 a.m. The speaker is respected Gordhan Jadatia sir, and the topic is youth and nation. Today's feedback link will open tomorrow by 2 p.m. So requesting to all participants, after 2 p.m. tomorrow you will feed the feedback and you will get this certificate on your registered ID. Again, thanking to Nirav sir, our Jeevan Jyot Trust principal sir, Principal K.N. Chavda sir, who is really inspiring us and for all this kind of thing. So again, thanking you all of them.